नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों और विश्लेषण के साथ। अब जबकि रात के 9 बज चुके हैं और लगभग पांचों राज्यों की तस्वीर साफ है। हालांकि कई जगह पर यह तस्वीर साफ नहीं है कि सरकार कौन बनाएगा, लेकिन 3 बड़े राज्य जो हैं वहां पर तस्वीर पूरी तरह से साफ है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड बीजेपी के खाते में गए हैं, जबकि पंजाब कांग्रेस के खाते में गया है। और जिस तरह से बीजेपी की एक बड़ी जीत हुई है उसके बाद बहुत तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इस पूरी जीत का देश की राजनीति पर, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर क्या कुछ असर पड़ेगा, क्षेत्रीय राजनीति, क्षेत्रीय जो संगठन है, क्षेत्रीय दल हैं, उनकी राजनीति पर क्या कुछ असर पड़ेगा, और क्या 2019 में अब उत्तर प्रदेश की इस जीत के बाद बीजेपी को चुनौती देना और ज्यादा मुश्किल हो गया है। और जाहिर तौर पर सबसे बड़ी बात जो इस जीत से सामने आई है वो ये कि मोदी का मैजिक अब तक जारी है और मोदी को चुनौती देने वाला फिलहाल दूर तक कोई भी राष्ट्रीय नेता दिखाई नहीं दे रहा है। इन सब पे बात करेंगे। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव, मेरे साथ मेरे सहयोगी मार्कलिन है। Right, absolutely. And apart from the impact that this has on regional politics, on national politics, it also has an impact on governance and the strength of the central government, also the presence of India as a nation and how India deals with the world, because when the party in power gets stronger, obviously India's presence also in the world improves. So we'll be looking at all that, you know, the big picture about these elections. But first, let's catch a look at the headlines. BJP achieves a landslide victory in Uttar Pradesh. It baffles ruling SP, its ally Congress and BSP completely with the humiliating result. The Prime Minister expresses gratitude to the people of India for their continued faith, support and affection. PM to attend the BJP Parliamentary Board meeting tomorrow. BJP President Amit Shah hails his party's strong showing in the assembly elections, says this will bring an era of politics of performance and will bring to an end the politics of casteism, nepotism and dynastic politics in the country. Congress makes a resounding comeback in Punjab after a decade, riding on wins in 77 seats out of 117 seats. PM Modi thanks the people of Punjab for the opportunity to serve them for 10 years and for their support in these polls. Major setback for the Congress in Uttarakhand and a thumping victory for the BJP there. Chief Minister Harish Rawat loses both seats. The BJP wins 57 seats out of 70. PM expresses gratitude to the people of Devbhoomi for exemplary support. Hung assembly in Goa as no party gets a clear majority. The Congress ends up as the single largest party with the BJP at a close second. Chief Minister Lakshmikant Parsekar tenders his resignation to the governor. And Manipur witnesses a nail-biting contest between the BJP and the Congress. The BJP makes huge inroads even as Ramvilas Paswan's LJP declares support to the BJP in the state. The Congress emerges as the single largest party. In another news, 12 CRPF personnel martyred as Naxals ambush a patrol party in Maoist hotbed of Sukma in Chhattisgarh. 4 others injured in the incident. The Home Minister Rajnath Singh and the DGP of the CRPF pay glowing tributes to the martyrs. तो इस वक्त की सुर्खियां थी और इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम खास तौर से जो चुनाव नतीजे आए हैं उन नतीजों का गहराई से विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सुबह से हम लगातार देख रहे हैं कि चुनाव नतीजे आ रहे थे और नतीजों के साथ साथ रिएक्शंस आ रहे थे और उसके बाद कार्यकर्ताओं का ढोल धमाका शुरू हुआ, जीत का जश्न शुरू हुआ। कहीं जीत का जश्न था, कहीं हार का गम था, ये सब कुछ हमने देखा। लेकिन अब हम इस चुनाव नतीजों को गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये नतीजे क्या कुछ कहते हैं। लगभग 2 महीने का धुआंधार प्रचार हुआ और उस प्रचार के बाद आज उत्तर प्रदेश के नतीजों ने सबको चौंका दिया। 2014 के प्रदर्शन को दोहराते हुए भाजपा ने 325 सीटों का आंकड़ा छू लिया। ये नतीजे बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का 15 साल का वनवास खत्म हो गया है। जो विकास का वनवास है, उस विकास के वनवास को समाप्त करके
14 साल के बाद फिर उत्तर प्रदेश में विकास की धारा बहाने का चुनाव है। यूपी की चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा जताया था कि राजनीतिक दृष्टि से देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में भाजपा का वनवास खत्म होगा। नतीजों के बाद साफ हो गया है कि पार्टी 14 साल का वनवास खत्म करके सत्ता में धमाकेदार वापसी कर रही है। हालात ये हैं कि पार्टी ने सीटों का 13 शतक भी लगा दिया है और इतनी सीटें हासिल की हैं कि यूपी के इतिहास में आज तक किसी ने इतनी सीटें नहीं जीती। पार्टी की इस जीत को पीएम मोदी ने उत्साहवर्धक और आनंददायक करार देते हुए विश्वास और समर्थन जताने के लिए जनता का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, भाजपा में विश्वास जताने, समर्थन देने और स्नेह दर्शाने के लिए देश की जनता के प्रति आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने 1991 की राम लहर पर सवार होकर भी भाजपा इतनी सीटें हासिल नहीं कर पाई थी। जब 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, तब भाजपा ने यूपी में बहुमत हासिल किया था। कल्याण सिंह के नेतृत्व में लड़े गए वर्ष 1991 के चुनाव में भाजपा को 221 सीटें हासिल हुई थी। इसके बाद से भाजपा कभी इस आंकड़े के आसपास तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन पीएम मोदी की सुनामी ने इस आंकड़े को पार करने में सफलता हासिल कर ली है। बीजेपी की ये जीत बताती है कि जनता में पीएम मोदी की लोकप्रियता आज भी कायम है। इस जीत का सीधा संदेश है गठबंधन की राजनीति और क्षेत्रीय राजनीति का अंत। उत्तर प्रदेश में पिछले 14 सालों में सपा और बसपा की सरकारें रही थीं और जातिवादी राजनीति का बोलबाला रहा, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि इन सब का अंत हो गया है। इन नतीजों का सबसे बड़ा मतलब ये है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता पहले की ही तरह आज भी बदस्तूर कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD। उत्तर प्रदेश के नतीजों में बहुत कुछ है। अगर आप गहराई से देखेंगे तो ये ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने पहली बार इतनी बड़ी जीत हासिल की है। सिर्फ ये नहीं, बल्कि साथ साथ कुछ और भी अहम बातें हैं। हम उन अहम बातों को आपको बताएंगे, लेकिन सबसे अहम बात एक जो आप कह सकते हैं वो ये है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी इतनी बड़ी संख्या तक पहुंची है। और इसके साथ साथ बीजेपी के जो बड़े नेता, कुछ बड़े नेता, हालांकि वो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, ऐसे कई नेता हैं जो कि जिनका जीत का मार्जिन जो है 80,000, 1 लाख का भी जीत का मार्जिन रहा। जबकि विधानसभा चुनाव में हम ये कहते हैं कि छोटी जीत होती है, 20-25 हज़ार की जीत होती है, लेकिन यहां पर बीजेपी के कुछ नेताओं ने 50,000, 80,000, 1 लाख की मार्जिन से जो है जीत हासिल की है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहरहाल इस बीजेपी की सफलता को केवल राज्य के एक हिस्से में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि राज्य के एक हिस्से में सफलता नहीं आई। पश्चिम उत्तर प्रदेश हो या पूर्वांचल, बुंदेलखंड हो या रुहेलखंड, हर जगह बस कमल ही कमल का कमाल दिख रहा है। पूरे देश की नजरें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर लगी हुई थी। तमाम दावों और सियासी उठापटक के बीच जब 11 मार्च को ईवीएम ने नतीजे देने शुरू किए तो देखते ही देखते पूरे उत्तर प्रदेश में भगवा रंग छा गया। 11 फरवरी को चुनावी संग्राम की शुरुआत हुई। पहले चरण के तहत शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ सहित कुल 73 सीटों पर वोट डाले गए। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन सीटों पर जाटों का दखल 15 से 25% वोट का है। पश्चिमी यूपी में मुस्लिम वोट के पीएसपी के खाते में जाने के कयास लगाए जा रहे थे। ऐसे में आरएलडी और बीएसपी यहां मजबूत मानी जा रही थी, लेकिन नतीजे ने सारे समीकरणों को ध्वस्त करते हुए भाजपा की झोली में सर्वाधिक सीट डालकर सबको हैरान कर दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली है, यहाँ पर 73 में से 67 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की, और वही पश्चिम से जो हवा चली वो पूरब तक रही और पूरे उत्तर प्रदेश में एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला। दूसरा चरण बीजेपी के लिए किसी अग्नि परीक्षा के दौर से कम नहीं समझा जा रहा था। सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, बदायूं जिले में मुकाबला बीएसपी और एसपी के बीच माना जा रहा था। इस दौर की सभी सीटों पर 50% मुस्लिम आबादी को बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा था। लेकिन विधानसभा चुनाव में जनता ने जात पात से ऊपर उठकर भाजपा पर अपना भरोसा जताया और भाजपा को सर माथे पर बिठा लिया। चुनाव के तीसरे चरण में यूं तो माहौल समाजवादी पार्टी के अनुकूल समझा जा रहा था, लेकिन इस बार भी यादव लैंड में बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन करके सबको चौंका दिया। खराब कानून व्यवस्था से ऊब चुकी जनता ने भाजपा को भरपूर समर्थन दिया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की आंधी ऐसी चली कि राज्य का कोई भी इलाका अछूता नहीं रहा। बुंदेलखंड जो कभी बसपा और सपा का गढ़ हुआ करता था, बुंदेलखंड में भी बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। चौथे चरण में ललितपुर, महोबा और चित्रकूट समेत बुंदेलखंड के सभी जिले बीएसपी का गढ़ कहा जाता है। चौथे चरण में ललितपुर, महोबा और चित्रकूट समेत बुंदेलखंड के सभी जिलों पर बीएसपी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन बदहाल बुंदेलखंड की जनता को भाजपा ने उम्मीद दिखाई और यहां भी भाजपा ज्यादातर सीटों पर कब्जा करने में कामयाब रही।
पांचवें चरण के तहत मुकाबला सुल्तानपुर, फैजाबाद और अमेठी में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के साथ ही था। अपनी बदहाली के लिए जिम्मेदार कांग्रेस सपा गठबंधन को जनता ने सिरे से खारिज कर दिया और मोदी लहर के आगे सारे समीकरण ध्वस्त होते चले गए। सूबे के और इलाकों की तरह अवध में भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में जमकर वोट बरसे। यहां से 67 सीटें आती हैं, जिसमें से तकरीबन 55 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा जमा लिया। ये वही इलाका है जहां पर सपा और बसपा ने पिछले एक दशक से अपना कब्जा जमा रखा था। जातीय राजनीति की नींव पर खड़ी इन पार्टियों के नीचे से धरती कब खिसक गई, इन्हें पता ही नहीं लगा। आज जब मतगणना हो रही थी तब लखनऊ में बारिश हो रही थी, लेकिन साथ में बारिश हो रही थी उम्मीदों की, आकांक्षाओं की। कमोवेश यही स्थिति छठे और सातवें चरण की 89 सीटों पर भी रही। मजबूत मानी जा रही समाजवादी को करारा जवाब देते हुए भाजपा पूर्ण बहुमत पाने में कामयाब रही और जब नतीजे आए तो पूरा पूर्वांचल भगवा रंग में नहा गया। बीजेपी के लिए मोदी जी ने पूरे पूर्वांचल में रैलियां की, 3 दिन तक बनारस में समय दिया और इसका नतीजा आया, पूरे बीजेपी ने पूरे पूर्वांचल में अपना परचम फहराया। प्रचंड बहुमत हासिल कर भाजपा जहां यूपी में 14 साल बाद घर वापसी कर रही है, वहीं सपा बसपा सहित कांग्रेस के लिए अब उत्तर प्रदेश में राह आसान नहीं दिख रही। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चुनाव की खबरों को रोक कर हम एक बार चलते हैं सीधा, हम आपको लिए चलते हैं रायपुर लिए चलते हैं। सुकमा में आज एक अटैक हुआ था और सीआरपीएफ के कुछ जवान शहीद हुए थे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह वहां पर बात कर रहे हैं। लेकिन हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जिस प्रकार की उनकी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम पूरी तरह से काबू पाने में कामयाब होंगे। जो ही सूचना प्राप्त हुई, जैसा हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी श्री डॉक्टर साहब ने जो ही इसकी जानकारी दी, मैंने भी फैसला किया यहाँ आने का और आने के बाद सबसे पहले हम लोग हॉस्पिटल गए जहाँ पर कि हमारे 2 जवान जो घायल हुए हैं वो एडमिट हैं, वो खतरे से बाहर हैं और यहाँ पर भी रीथ लेने का भी कार्यक्रम हुआ है। और जैसा डॉक्टर साहब ने जानकारी दी है कि हम लोगों की पूरी यह कोशिश है कल 3-4 बजे तक जहां जहां के रहने वाले हमारे शहीद जवान हैं उन तक उनकी डेड बॉडी वहां पहुंच जाए। और यह भी मैंने फैसला किया है कि सब मिला जुलाकर जो भी धनराशि मिलती है किसी भी सूरत में वह 1 करोड़ रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। अन्य जो चीजें मिलती हैं वो तो मिलती रहेंगी, लेकिन सब मिला जुलाकर जो मिलती है उसमें जो कमी रह जाएगी हम उसे कोशिश करेंगे कि न्यूनतम 1 करोड़ की धनराशि हमारे जो शहीद जवानों के जो परिवार के सदस्य हैं उनको प्राप्त हो सके। यह भी सच है कि अपने बहादुर जवानों की शहादत को पैसे के आधार पर नहीं आंका जा सकता, लेकिन उनका देश के लिए, समाज के लिए जो कंट्रीब्यूशन है उसे भी यह देश कभी भूलेगा नहीं। और जहां तक माओवादियों की गतिविधियों का सवाल है, अब उसमें बड़ी तेजी से गिरावट आई है, इसी कारण उनके अंदर एक हताशा पैदा हुई है। परिणाम स्वरूप बौखलाहट में इस प्रकार का कदम उनके द्वारा उठाया गया है। क्या माओवादियों पर भी सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे? बस इतना ही आप मानिए कि शहादत को व्यर्थ नहीं जाने दें। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू। जवानों की शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह छत्तीसगढ़ में इस वक्त रायपुर में एक संवाददाता सम्मेलन में कह रहे, संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कह रहे थे और आज वो दौरे पर गए जहां पर 11 जवान सीआरपीएफ के शहीद हो गए नक्सली हमले में और उसी संदर्भ में गृहमंत्री वहां का दौरा करने पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि जवानों के शहीद जो शहादत है उसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे। बहरहाल हम लौटते हैं एक बार फिर से चुनाव से जुड़ी खबरों पर। हमने आपको दिखाया कि कैसे पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बीजेपी की लहर चल रही थी, आंधी चल रही थी और किसी को ये पता भी नहीं था। और ये आंधी जो है आज साफ तौर पर सीटों में जो है कन्वर्ट होती हुई, बदलती हुई साफ दिखी। उत्तर प्रदेश में एक तरफ बीजेपी की आंधी चल रही तो दूसरी तरफ हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के अंदर जो है वो खींचतान लगभग जो है वो हर रोज हम कोई ना कोई खबर देखते थे जिसमें उनकी खींचतान जो है वो उजागर हो रही थी। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव का काम बोलता है का नारा जो है
वो औंधे मुंह गिर गया, फेल हो गया। विकास के मामले में प्रधानमंत्री मोदी उन पर भारी पड़ गए। इस हार से अखिलेश की रणनीति पर सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं। पार्टी के अंदर जो घमासान पहले चल रहा था वो अब फिर से और तेज हो सकता है, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणामों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला तो अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की करारी हार हुई है। जाहिर है समाजवादी पार्टी और अखिलेश के लिए ये एक बड़ा झटका है। अखिलेश अपने काम पर जनता से वोट मांग रहे थे, लेकिन लगता है कि जनता ने उनके विकास के वादे पर भरोसा नहीं किया। विकास के मामले में पीएम मोदी उन पर भारी पड़ गए हैं, लेकिन केवल यही उनकी हार का कारण नहीं है। पिछले कुछ महीनों से पार्टी में जारी घमासान का असर भी नतीजों पर साफ दिखा है। चुनाव में हार के बाद भी पार्टी का ये घमासान जारी है। अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने पार्टी की हार के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा कि ये समाजवादियों की नहीं, घमंडियों की हार हुई है। शिवपाल सिंह यादव ने कहा, यूपी चुनाव में समाजवादियों की नहीं, घमंडी लोगों की हार हुई है। राज्य की जनता ने उन लोगों को सबक सिखा दिया है जिन्होंने घमंड में आकर मेरा अपमान किया और नेताजी को हटाया। चाचा ने हमला किया तो भतीजा कहां पीछे रहने वाला था। अखिलेश यादव हार के बाद जब मीडिया के सामने आए तो अपने ही तरीके से चाचा को जवाब दिया। वैसे आप हमारे व्यवहार को तो जानते हो, लगता किसी और हमारी परछाई के घमंड के बारे में बात कर रहे होंगे। कहा यह भी जा रहा है कि अखिलेश का अति आत्मविश्वास उन पर भारी पड़ गया। अखिलेश ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव और चाचा शिवपाल यादव को किनारे कर दिया, पार्टी पर खुद कब्जा कर लिया। पिता के विरोध के बावजूद अखिलेश ने अपनी जीत सुनिश्चित करने के इरादे से राहुल गांधी के साथ गठजोड़ किया। गठबंधन के तहत कांग्रेस को 105 सीटें दी गई। ऐसे में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं में इस फैसले से गुस्सा पनपा। नतीजा ये रहा कि समाजवादी पार्टी चारों खाने चित हो गई, लेकिन इसके बावजूद अखिलेश गठबंधन के फैसले पर कायम है। मुझे खुशी है इस बात के साथ कि कांग्रेस के साथ गठबंधन रहा, 2 युवा नेता साथ आए और गठबंधन आगे भी रहेगा। इस बार के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से न केवल अखिलेश के भविष्य का फैसला होना था, बल्कि उन नीतियों और फैसलों की भी समीक्षा होनी थी जिसे अखिलेश ने खुद लिया था। उस नीति की समीक्षा होनी थी जिसे अखिलेश ने अपने पिता को दरकिनार करके लिया था। उस फैसले की समीक्षा होनी थी जिसे अखिलेश ने पार्टी लाइन से हटकर कांग्रेस से हाथ मिलाने का फैसला किया था। फिलहाल जनादेश तो यही कहता है कि अखिलेश की नीति और फैसले दोनों कसौटी पर खरे नहीं उतरे। अखिलेश भले ही गठबंधन को सही ठहरा रहे हों, लेकिन उनकी पार्टी के नेता ही फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने 2 दिन पहले ही कह दिया था कि गठबंधन से सपा को कोई फायदा नहीं हुआ है। वैसे नतीजों के बाद भी चाचा भतीजे की लड़ाई रुकने वाली नहीं है। शिवपाल सिंह यादव पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि 11 मार्च को नई पार्टी बना सकते हैं। पिछले साल चाचा शिवपाल सिंह यादव और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच मनमुटाव सामने आया था। टिकट बंटवारे को लेकर झगड़ा बढ़ने पर अखिलेश यादव ने उन्हें सरकार और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया था। उसके बाद से ही शिवपाल यादव बेहद नाराज दिख रहे थे। शिवपाल अपनी परंपरागत जसवंत नगर सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं। वहीं अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष के पद पर शिवपाल ही दावा ठोकेंगे। लेकिन क्या अखिलेश चाचा को नेता प्रतिपक्ष बना देंगे? ऐसे में एक बार फिर अंदरूनी रार सामने आ सकती है। जाहिर है पार्टी का यह झगड़ा थमने वाला नहीं है। मुलायम सिंह की पत्नी साधना यादव पहले ही घोषणा कर चुकी हैं कि वो चुप नहीं बैठेंगी। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी में पिक्चर अभी बाकी है। लखनऊ से अजय विक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो समाजवादी पार्टी की पिक्चर अभी बाकी है, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और सिर्फ समाजवादी पार्टी का अंदरूनी झगड़ा नहीं, हम आपको ये भी याद दिला दें कि कांग्रेस के ऊपर भी उंगलियां उठाई गई थी। समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने साफ तौर पर कहा था कि कांग्रेस ने उनको हराने के लिए अंदर खाने भीतर घात किया है, अंदर खाने काम किया है। इस पर भी हम बात करेंगे कि गठबंधन दरअसल कितना चल पाएगा, क्योंकि अखिलेश तो कह रहे हैं चलेगा, लेकिन वास्तव में कितना चल पाएगा, कब तक सवारी कर पाएंगे साइकिल की राहुल गांधी, ये कहना मुश्किल है। इस पर हम जरूर चर्चा करेंगे। और हम बता दें कि हमारे साथ स्टूडियो में 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सुदेश वर्मा हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, और हमारे साथ इसके अलावा आशीष दुआ हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, और प्रफुल्ल केतकर, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। लेकिन इससे पहले कि इस चर्चा का हम शुरू करें, आगे बढ़े, विश्लेषण की गहराई में जाएं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं।
मुझे मिला। मुझे भी मिला। और मुझे भी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की इस योजना में छोटे कारोबारियों के लिए है टर्म लोन यानी मियादी कर्ज, जिसमें 10 लाख तक की मदद का प्रावधान है। एनजीओ से जुड़ी अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए है माइक्रो फाइनेंस स्कीम यानी लघु वित्त योजना, जिसमें है 50,000 तक का कर्ज। इसके अलावा माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए है एजुकेशन लोन स्कीम, जिसमें है प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन के लिए बहुत ही कम ब्याज दरों पर लोन। तो आप भी NMDFC की कर्ज स्कीम से लाभ उठाएं। हुनर को हौसला। पेश है नए युग का नया महिंद्रा यूवो। इसका पावरफुल इंजन करे ऐसी जमीन पे भी ज्यादा काम जो पहले कभी नहीं हुआ। 15 गियर यानी अब हर काम होगा जल्दी। आधुनिक हाइड्रोलिक्स यानी हर बार 100% सटीक काम। महिंद्रा यूवो, ज्यादा जल्दी बेहतर। क्या बात है राशिद, फर्स्ट डिवीजन में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी तुम उदास हो? लेकिन सर वो सोच रहे होगे कि खर्चा कहाँ से आएगा? हैं? चिंता मत करो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप हमारे लिए सर? हाँ, तुम्हारे लिए और अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय से जूनियर रिसर्च फेलोशिप या एमफिल के लिए आवेदन दिया। मदद हमारी, मंजिल आपकी। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। यार बहुत परेशान हूँ, नई जगह है, समझ नहीं आ रहा आधार कहाँ से बनवाऊँ? है तो पास में ही। अरे भाई इधर उधर मत घुमाओ, आधार बनवाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आप आधार के टोल फ्री नंबर 1947 पर कॉल करके जानकारी पा सकते हैं, या आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आधार की वेबसाइट uidai.gov.in पर जाकर नजदीकी आधार केंद्र का पता जान सकते हैं। मेरा आधार मेरी पहचान। Welcome back, and let's now turn to our guests in the studio. We'll start with Mr. Praful Ketkar. You know, I had said in the opening about how this strengthens the center, strengthens the hands of government. What are the advantages of that to the nation as a whole? You know, can we see more investments coming in? Can we see India's dealings as a country, you know, as an emerging power improve? How do you view this? You know, it's not just an election. I mean, of course, Uttar Pradesh is the biggest state, but it changes the dynamics of the strength of the government at the center. See, we have to see and analyze these results. One is, of course, electorally and politically, because it will have, certainly will have impact in coming elections before 2019. 6 elections, 6 state level elections, assembly elections are on cards. Okay. Among them, 3 big, Himachal, Gujarat and Karnataka. So they will certainly see impact of these results. But more important than that, now perhaps, you know, the government otherwise also was taking bold decisions, but more freely can go for the implementation of GST, for example, sure. Other economic reforms. So investors are already showing some confidence even before the results were declared. So that will certainly have impact on the economic policies. As far as the legislative process is concerned, in coming days the composition of Rajya Sabha will change. Right. That will also have impact, because in that situation, you know, government will be in better position to take on many bills ahead. Because there will be lesser roadblocks in the upper house. Right. Thirdly, you know, going for 2019 with report card, what Prime Minister has been saying again and again. Okay. So now he will have to concentrate on that aspect for next 2 years. What Sure. are the key delivery areas? Sure. And once he start doing that, I think next 6 to 9 months are going to be very crucial. And perhaps, as somebody said to Prime Minister himself through Twitter, that perhaps your best is yet to come, and that we want to see in 6 to 9 months. So that is perhaps going to be a real testing time in coming. Mr. Dua, let's bring you into the discussion here. You know, I mean,
with the Congress, when we talk about the Congress in the current time, it seems to be not the choice of the people, but by default, if we don't want somebody, go back to the Congress, something like that. And the results in Uttar Pradesh, to some extent, seem to show that the dynasty, which had a small presence in those areas of Raebareli and Amethi, are also taking a hit over there, which means that the power center of the party seems to be getting as weak as possible. What does it really mean? See, actually, we congratulated Bharatiya Janata Party on a spectacular win in UP. But we should not forget that these were elections of 5 different states. We've lost Uttarakhand, where we were in power. UP, we were not in power, but we were with a partner who was in power. And it was a forward-looking alliance which we forged of 2 young leaders. Public did not elect that, public did not choose that. But then if we go to other states, then we've wrested power from BJP in Goa. We've wrested power from them in Punjab, which is again Shiromani Akali Dal. It's only Punjab. The other 2 states, even though you have emerged as the leading party, you have actually got a lower vote share than the BJP. Mark, yes. if you see the composition of Goa Assembly over last many elections, it is never a clear-cut victory. It is never 20 or 21 seats. It's the single largest party, which is close to 2021, which forms the government. And we are going to form the government. In 24 hours, you will come to know that Goa we formed the government, Manipur we formed the government. We are the single largest party there as well. No, I agree with that. What I was saying is in terms of vote share, don't discount our victory and put an exorbitant tag to a victory of BJP in another state. Which is in a state. If we see state by state, we are victorious in 3 states, and they are victorious in 2 states. People have to understand the difference between the size of the scale. No, but a state is a state. I think we have to understand the federal structure of the country, and we should not deviate from the constitution. Constitution has given the country a federal structure. आशीष जी, हम इस पर जो आप कह रहे हैं, इस पर हम आगे बहस में इस बात पर जरूर बात करेंगे कि क्या ये कांग्रेस का रिवाइवल है। अगर पंजाब से हम कहें, पंजाब मेन, बाकी मैं अभी राज्यों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं छोटे राज्य वहां इस तरह की स्थिति रही गोवा में। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या आप संतुष्ट हैं, क्योंकि एक आंकड़ा छोटा सा आपकी जानकारी बता दूं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं, अपना दल 9 सीटों पर है। ये अपने आप में कांग्रेस के लिए, ये अपने आप में कांग्रेस के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात होनी चाहिए राष्ट्रीय पार्टी के लिए। जहां तक उत्तर प्रदेश के नतीजों की बात है, वो हम उससे संतुष्ट नहीं है। हम उससे पहले भी कह चुके हैं और हमने भारतीय जनता पार्टी को उस बारे में बधाई भी दी है। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश के नतीजे क्यों इस तरह के आए हैं। अगर हम उसके एनालिसिस में भी जाएं तो बहुत सारी चीजें हैं। 73 MP मिले थे पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 80 में से, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर अपने आप में है। उसके बाद जिस तरह से वहां की राजनीति चली है, चाहे मुजफ्फरनगर से चली हो, चाहे पलायन से चली हो, चाहे वो राम मंदिर से पहले चलती आई हो, उसमें किस तरह से कंसोलिडेशन किया गया शमशान कब्रिस्तान का, जो कि आगे अपने में शर्मनाक बात है कि एक देश के प्रधानमंत्री होते हुए अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें तो वो देश के नागरिकों के लिए भी शर्मिंदगी की बात है। वो जो आप कह रहे हैं, वो जो आप कह रहे हैं, मैं उस पे सुदेश जी टिप्पणी लूंगा, लेकिन हम उस भाषा की भी बात नहीं करेंगे। हम उसमें जाना भी नहीं चाहते, क्योंकि आपने उठाया, मैं चाहूंगा उस पे सुदेश जवाब दे। सुदेश साथ में, लेकिन हम सबसे पहले ये चाहेंगे कि चुनाव में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और जहां तक कसाब की बात है, लेकिन क्या चुनाव में गठबंधन इस आधार पर बनने चाहिए कि आपको एक वर्ग विशेष की, आपको मुस्लिम के वोट देखिए, आप आज देखिए आशीष मुस्लिम के वोट की बात नहीं, आशीष जी अगर आप मेरी बात, आशीष जी ये हम सब पत्रकार जानते हैं, आप लोग कोई खुले में नहीं कहता है, कई लोगों ने खुले में ये बात कही है, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने। कांग्रेस थोड़ा सा इस मामले में थोड़ी कह सकते हैं कि इस मामले में बयान देने में उसने कम से कम शांति बरती, लेकिन हम सब पत्रकार जानते हैं कि कांग्रेस का अलायंस जो है समाजवादी पार्टी से सिर्फ और सिर्फ इसलिए था कि मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हो जाए, और इसलिए आपने
जिनकी अंडरस्टैंडिंग है तो गलत है वो। लेट मी कंप्लीट सर। और इसीलिए आपने पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर आपको एक ग्रांड अलायंस बनाना होता बीजेपी के खिलाफ, अगर आपकी मंशा बीजेपी को रोकने की होती तो अजीत सिंह आपके साथ होते, लेकिन अजीत सिंह को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया गया कि अगर जाट आ जाएंगे तो मुस्लिम वोट आपके पास नहीं जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं, वो वाली कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन हम सब जानते हैं वो सीट्स की एडजस्टमेंट की बात थी। एक ओवरऑल जब सीट्स का बैलेंस हुआ तो उसमें राष्ट्रीय लोकदल नहीं फिट बैठ रहा था, तो वो उसमें ना तो कांग्रेस पार्टी ने, और मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बिल्कुल जिम्मेवारी से कह सकता हूं कि हमने उस तरह की जात पात की राजनीति कभी नहीं की। और सबको मालूम है कि कांग्रेस ऑलवेज बिलीव्स इन इंक्लूसिवनेस। ये इंक्लूसिव राजनीति कर रहे थे, पर आपने आपकी तरफ से जो है वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश हुई, कब्रिस्तान और होली दिवाली की बात हुई, और आपने जो है इस तरह से वोटों को वहां पर डिवाइड करने का काम। अशोक जी, सबसे पहले गुजारिश है पैनलिस्ट से कि मैंने बहुत शांति से सुना, हमारी बात को भी सुन लेंगे, प्रवोक नहीं होंगे, क्योंकि आपको हक है अपना पक्ष रखने का। लेकिन हमें खुशी है अगर कांग्रेस ऐसा सोचती है, लोगों के मैंडेट के बाद भी अगर ये एरोगेंस कांग्रेस का है, जहाँ ये प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द बोल रहे हैं जो रिजेक्ट कर चुकी है जनता, तो इनका जनता क्या करेगी। हम तो चाहेंगे कांग्रेस सुधरे, नेशनलिस्ट पार्टी रही है। अगर हम कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं तो कांग्रेस की उस क्वालिटीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं। कांग्रेस परसे से हमें कोई दुश्मनी नहीं है जी। उस क्वालिटीज़ की बात करते हैं, अगर उस क्वालिटीज़ से आ जाए तो कंट्री के लिए अच्छा होगा। देखिए, मैं कुछ पॉजिटिव इंडिकेटर्स बताना चाहता हूँ, क्योंकि नेगेटिव में जाएंगे तो ये कुछ बोलेंगे, मैं कुछ बोलूँगा, तो उससे कुछ निकलेगा नहीं। जो आपकी जो दर्शक हैं उनके समझने के लिए ये चुनाव, क्योंकि यूपी असल में चुनाव का दंगल यूपी था, ठीक है, बाकी सब जगह भी चुनाव थे, किसी को भी नज़रअंदाज नहीं किया, तो सबके अपने महत्व हैं। यही कारण है कि सबसे ज़्यादा रैलीज वहाँ हुई, पदयात्राज हुए, वहाँ रोड शोज हुए, इनके भी हमारे भी सबके अपने अपने मुद्दों को लेकर हम गए। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है ना, टेक्टोनिक शिफ्ट है इंडियन पॉलिटिक्स में। किस तरह से? मैं बता रहा हूँ। टेक्टोनिक शिफ्ट इसलिए कि हमने जिस नैरेटिव को बदलने का प्रयास करते आ रहे हैं। देखिए, 2003 में आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में जब दिग्विजय सिंह हारे थे, मुख्यमंत्री थे वो, और उमा भारती जी ने उन्हें हराया था, उस समय बिजली, सड़क और पानी की बात हुई थी। बस याद है आपको? याद होगा बिल्कुल। और पूरा बंटाधार का नारा लगा था, क्योंकि बंटाधार मतलब उनके क्वालिटीज़ पर नहीं, डेवलपमेंट नहीं कर पाए थे, गड्ढे खोदे हुए थे हर जगह। उसके बाद से बीजेपी ने जो डेवलपमेंट नैरेटिव पकड़ा उसको हर जगह, और यही कारण देखिए मध्य प्रदेश में भी रिपीट हुए, छत्तीसगढ़ में भी रिपीट हुए, गुजरात में भी देखिए। गुजरात तो पैरागन ऑफ ब्यूटी अगर डेवलपमेंट के आप इंडिकेटर्स को देखना चाहते हैं। नहीं, लेकिन कब्रिस्तान फिर उसमें कहां से आता है? उसमें भी आ रहा है, उसमें इसलिए मैंने बोला, मैं थोड़ा तफसील से समझाने की कोशिश करूंगा कि आपके दर्शक आज जानना चाहेंगे नतीजे के बारे में। तो ये टेक्टोनिक शिफ्ट इसलिए कि हमने नैरेटिव बदला था, बिहार में एक झटका लगा, कहीं हम शायद अपनी बातों को पहुंचा नहीं पाए, हमारी ही कमी थी, हम उससे लेसन लिए। और उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश जो जाति का जमघट है, जाति की राजनीति होती आई है, पहली बार लगा, मतलब हमें इतना अच्छा लगा कि भारत जाति तोड़ के, हर नेगेटिव चीजों को तोड़ के विकास के लिए वोट दे रहा है, और लोग सिटीजन जैसा वोट किए हैं, किसी एक जाति का वोट नहीं है, सिटीजन सेंट्रिक वोट हुआ है, जहां हम बात कर रहे हैं लोगों की कि आपको अच्छी सड़क चाहिए, आपको अच्छा अस्पताल चाहिए, आपको अच्छा हेल्थ सर्विसेज चाहिए, एजुकेशन सिस्टम चाहिए। सुदेश जी, उसके लिए लोगों ने वोट दिया। उसी पर तो वो सवाल उठा रहे, वो कह रहे हैं कि आप मैं उसकी बात पर, इनकी बात पर बयान हूं। आपके पास एक स्टेटमेंट मिला, क्या स्टेटमेंट मिला? शमशान घाट वर्सेस कब्रिस्तान। ये स्टेटमेंट आया ये बताने के लिए कि उस समय के जो मुख्यमंत्री थे अखिलेश जी, अभी भी मुख्यमंत्री हैं, तो इन्होंने जो नैरेटिव दिया था उसमें इन्होंने एक कम्युनिटी के साथ नाइंसाफी की थी। आप अगर सत्ता में हैं तो आप एक आंख से देखिएगा, आपके लिए हर व्यक्ति सिटीजन है, वो मुसलमान नहीं है और हिंदू नहीं है जी, वो किसी जाति का नहीं है, किसी पंथ समुदाय का नहीं है, आपके लिए वो एक नागरिक है और उसकी जरूरतों को पूरा करना आपका फर्ज है। और अगर आपने किया उस डिस्क्रिमिनेशन को, हमने सिर्फ उस डिस्क्रिमिनेशन को बताया, हमने ये बोला कि अगर होली में देते हो तो ईद में दो। क्यों बोला हमने? दोनों चीज बोला नरेंद्र मोदी जी ने, एक चीज नहीं बोला।
तो सबके हक की बात कर रहे थे। होली और रमजान और उन्होंने इसी कहा, कारण से दिवाली और मैं रमजान। बता रहा हूँ, आप आश्चर्यचकित होंगे जब डीप एनालिसिस आएगा। ये बहुत मुसलमान की बात करते हैं, बहुत बड़ी संख्या में मुसलमानों ने हमें वोट दिया है, क्योंकि उन्हें भी अच्छी जिंदगी चाहिए। तो इसीलिए तो मायावती जी परेशान है, वो कह रही हैं आपने गड़बड़ कर दी, क्योंकि उनको यही लग रहा है कि 100 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम जो है डोमिनेटेड एरिया है, और आपको कैसे वो सीटें मिल सकती हैं। नहीं सकते। वो जो है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं इतने संकुचित सोच वाले, जो इस सोच से बाहर ही नहीं आ सकते कि इंडिया कास्ट से बाहर सोच सकता है, डेवलपमेंट के लिए वोट कर सकता है, ये उनके सोच में ही नहीं है, क्योंकि ये कास्ट बेस्ड पार्टी है। देखिए, रीजनलिज्म का उदय हुआ था ना कंट्री के पॉलिटिक्स में, वो रीजनल डेवलपमेंट के कारण हुआ था, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट नहीं होते थे। लेकिन ये रीजनल पार्टीज कास्ट बेस्ड पार्टी हो गए, रीजनलिज्म को भूल गए। ठीक है, और यही कारण है कि कंट्री में एक टेक्टोनिक शिफ्ट जो आपको दिखा है, ये कंट्री की सोचने की धारा बदली। ठीक है, मैं इस पर आशीष जी आपकी प्रतिक्रिया लूं, लेकिन मुझे इस वक्त छोटा सा एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद लौटते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आज ये जानना बड़ा जरूरी है कि दरअसल उत्तर प्रदेश की इस जीत में, इस बड़ी जीत में, बीजेपी की इस बड़ी जीत के पीछे दरअसल क्या कारण है, और क्या इन कारणों से कांग्रेस कुछ सीख सकती है। और जाहिर तौर पर बीजेपी को भी सीखना पड़ेगा, पंजाब से, गोवा से, वहां से भी बीजेपी को सीखना पड़े, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। परिंदों के ये घोंसले हमें यकीन दिलाते हैं, सच है ये, तिनका तिनका जुड़कर ही आशियाने बनाए जाते हैं। कुछ ऐसे ही बनाया हमने भी अपने इस देश को। सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, सरकार के हर निर्माण में एक तिनका हमने भी लगाया है, क्योंकि हमने सही समय पर आयकर चुकाया है। तो आओ एक बार फिर 15 मार्च तक अपने एडवांस टैक्स की अंतिम किस्त को जमा कर अपने देश, अपने आशियाने को बेहतर से और बेहतर बनाएं। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। अगर मैं कहूँ सूर्य रोशनी के साथ देते हैं हवा भी, मानना पड़ेगा। सूर्य फैंस, हवा का नया नाम। सूर्य फैंस, मेरी पसंद। और आपकी? सूर्य। अपना एक मकान हो, अपनी एक कार हो और साथ में कारोबार हो, पंजाब नेशनल बैंक के साथ ये सारे सपने साकार हो। पीएनबी, मेरा अपना बैंक। परिंदों के ये घोंसले हमें यकीन दिलाते हैं, सच है ये, तिनका तिनका जुड़कर ही आशियाने बनाए जाते हैं। कुछ ऐसे ही बनाया हमने भी अपने इस देश को। सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, सरकार के हर निर्माण में एक तिनका हमने भी लगाया है, क्योंकि हमने सही समय पर आयकर चुकाया है। तो आओ एक बार फिर 15 मार्च तक अपने एडवांस टैक्स की अंतिम किस्त को जमा कर अपने देश, अपने आशियाने को बेहतर से और बेहतर बनाएं। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। सफलता के लिए चाहिए एक संकल्प। जीएसटी, कई करों की जगह एक कर। सफलता के लिए चाहिए सुगमता। जीएसटी, वस्तुओं का बाधा रहित प्रवाह करेगा व्यापार आसान। सफलता के लिए चाहिए दमदार स्ट्रोक। जीएसटी, एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। जीएसटी, आजादी के बाद सबसे बड़ा कर सुधार, अर्थव्यवस्था के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। सरिता जी, इन दिनों आप अपने खान पान का ध्यान तो रखते हैं ना? अरे ये क्या, भोजन में साधारण नमक? आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करें। आपके शरीर में आयोडीन की कमी से आपका शिशु शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है। आयोडीन नमक इन सारी परेशानियों से आपको बचा सकता है। ये नमक बाजार में आसानी से उपलब्ध है। बच्चों को हंसता खेलता बचपन दें, अपनी संतान का भविष्य संवारें। सवारी जिंदगी चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक।
एक बार फिर स्वागत है आपका इस विशेष प्रसारण में। और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे और उन नतीजों के विश्लेषण पर हम लगातार बने हुए हैं। सुबह से आपको सबसे सही, सबसे सटीक नतीजे आपको डीडी न्यूज़ पर मिल रहे हैं और हम विश्लेषण भी लगातार कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस जीत के दरअसल क्या मायने हैं और इस हार के दरअसल जो है क्या अर्थ है। और बीजेपी की इस जीत के सबसे बड़े हीरो यूं तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। प्रधानमंत्री पार्टी और सरकार दोनों का चेहरा है, लेकिन एक शख्स जो पार्टी की रणनीति बनाता है और उस पर अमल करके उसे जीत के दरवाजे तक पहुंचाता है, वो है पार्टी का चाणक्य यानी अमित शाह। अमित शाह की रणनीति थी कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी उत्तर प्रदेश में 73 सीटों तक पहुंच गई थी और उसी कामयाबी को उन्होंने दोहराया है लगभग 325 सीटें हासिल करके। प्रदर्शन करते हुए 2/3 से ज्यादा सीटें हासिल कर ली हैं, तो इसका श्रेय पीएम मोदी के अलावा अगर किसी को जाता है तो वो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। अमित शाह को लंबे समय से पार्टी का मुख्य रणनीतिकार और चाणक्य माना जाता है। पिछले लोकसभा चुनाव और तमाम विधानसभा चुनाव में उन्होंने पार्टी की रणनीति को अमली जामा पहनाया। ये अमित शाह की रणनीति का ही असर था कि 2014 की तरह ही उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से पार्टी की सुनामी चली। अमित शाह ने सोशल इंजीनियरिंग का जो फार्मूला निकाला वो असर कर गया। बीजेपी की जीत का पूरा गणित अमित शाह ने बिठाया, लेकिन वो जीत का पूरा श्रेय पीएम मोदी को देते हैं। आजादी के बाद मोदी जी के नेतृत्व में देश के गरीब, पिछड़े, दलित तबके ने एक बहुत बड़ी आस्था जताई है और श्रद्धा के साथ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का समर्थन किया है। और आज सबने ये स्वीकार करना पड़ेगा, हमारे विरोधी भी अगर स्पिरिट से देखते हैं तो उनको स्वीकार करना पड़ेगा कि आज़ादी के बाद के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर श्री नरेंद्र मोदी आज देश के सामने उभरे हैं और इसमें किसी के मन में कोई संशय नहीं है। अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के बाद से ही यूपी के लिए पार्टी की रणनीति बनानी शुरू कर दी थी। पार्टी के लिए टिकट वितरण से लेकर सोशल इंजीनियरिंग को साधने की सारी तैयारियां अमित शाह की थी। समाज के सब वर्गों को एकजुट कर उनका वोट पार्टी के लिए तैयार करना अमित शाह की खास रणनीति का हिस्सा था। केंद्र सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए भी अमित शाह ने पूरी तैयारी की ताकि लोगों को सरकार के फैसलों की जानकारी मिल सके। जीत के बाद अमित शाह ने साफ कहा कि ये बीजेपी की गरीबोन्मुख नीति की जीत है। मोदी सरकार ने 3 साल में जिस प्रकार से गरीब कल्याण के लिए योजनाएं बनाई और न केवल बनाई, 93 से ज्यादा योजनाओं को जमीन पर पहुंचाने में सफलता पाई, मुझे लगता है कि इस जो सरकार की कार्यवाही है, जो सरकार का कामकाज है, इस पर ये 5 राज्यों की जनता ने मुहर लगाई है। अमित शाह ने इस बार ऐसा गणित बिठाया कि सपा और बसपा को चुनावी करंट लग गया। पार्टी ने अपना वोट मजबूत किया तो दूसरी पार्टियों के वोट बैंक में तगड़ी सेंध भी लगाई और इसका नतीजा ये रहा कि यूपी में पार्टी ने इतिहास रच दिया। दिल्ली से शैलेंद्र मिश्र और विक्रमजीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बीजेपी ने आज इतिहास रच दिया और इस जीत के जो नायक थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो रहे ही, जीत के एक और नायक हैं, उनके पास आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं। केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हमारे साथ जो है इस वक्त सीधा लखनऊ से जुड़ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी, डीडी न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं दिल्ली स्टूडियो से अशोक श्रीवास्तव बोल रहा हूं। सबसे पहले आपको बधाई। और मैं यहां पर एक बात जोड़ूं, क्योंकि जब आप अध्यक्ष बने थे तो पहला इंटरव्यू आपका, जब आप प्रदेश अध्यक्ष बने थे, पहला इंटरव्यू आपका डीडी न्यूज पर ही हुआ था और मुझे याद है उस वक्त जो है आप जिस तरह से लगभग मेहनत कर रहे थे और लोग सब जान रहे थे कि आप ग्राउंड पर उतरकर लगातार जिले जिले में जा रहे थे और जो बूथ लेवल का काम है आपने उस वक्त शुरू कर दिया था अध्यक्ष बनते ही। जाहिर तौर पे जीत में बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन मुझे यह भी याद है जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का जब झगड़ा चल रहा था और पूरे मीडिया में इस झगड़े की खबर थी, बीजेपी चुपचाप अपनी परिवर्तन रैली निकाल रही थी और लोगों को मोबिलाइज कर रही थी। क्या ये सब फैक्टर जो हैं, जो जमीन पर काम हुआ, क्या आपको लगता है वो मेहनत जो है आपको पे कर रही है? अब निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी ने संगठन के जो अभियान चलाए, आंदोलन के जो अभियान चलाए, जन जागरण के जो अभियान चलाए, उनका तो योगदान इस ऐतिहासिक विजय में है ही, लेकिन मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का
जो गरीबों के हित के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं का एक तरह से अंबार लगा देने का काम किया, गरीब के जीवन में खुशहाली लाने के लिए केंद्र सरकार ने अनेक योजनाओं को देने का काम किया, उसका बहुत बड़ा असर है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस प्रकार से यूपी की जनता खड़ी थी माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, उसी प्रकार से 2017 में माननीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, केंद्र सरकार को मजबूत बनाने के लिए आज भी मोदी जी के साथ खड़ी है। और मोदी जी ने जो भी फैसला लिया है उत्तर प्रदेश की जनता ने सदा उसका समर्थन किया है, साथ दिया है। और मैं यूपी की जनता को नमन करता हूं कि मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के कमल को खुशहाली के कमल के रूप में खिला दिया है और यूपी के विकास के रास्ते को खोल देने का काम किया है। पर केशव जी बहुत ईमानदारी से बताइएगा, मैं अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा, क्योंकि बहुत सारी बयान आपके पहले के भी मौजूद हैं। ये ठीक है कि आप कह रहे थे, अमित शाह कह रहे थे कि भाई हमारी बड़ी जीत होगी, 300 सीटें आएंगी, ये सब कह रहे थे, लेकिन 300 सीटें समाजवादी पार्टी भी कहती थी, 300 सीटें मायावती भी कहती थी। तो ये तो एक चुनावी एक नारा था कि भाई हमें सीट मिल रही है। लेकिन क्या आप मानते थे कि 325 सीटें, क्या आपको दिख रहा था कि 325 सीटें इतनी बड़ी जीत कि लोकसभा की जीत दोहरा सके? क्योंकि सब ये कहते थे कि लोकसभा में जो कुछ हुआ उसको दोहराना जो है अब बिल्कुल संभव नहीं है उत्तर प्रदेश में। देखिए, मैंने लगातार इस बात को दोहराया था कि हम 2017 के विधानसभा चुनाव में 2014 दोहराएंगे। जो विजय हमें 2014 में मिली थी वह विजय हमें 2017 में भी मिले, इसका हम प्रयास करेंगे। और हमने नारा लगाया था उस समय भी कि अब की बार 300 पार, हम 300 से अधिक सीटें जीतने का विश्वास लेकर के हम जनता के बीच में थे। 1,40,000 हमारी बूथ समितियां थी, 4 परिवर्तन यात्राएं मेरी चल रही थी, 17,000 किलोमीटर तक गई। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बूथ अध्यक्ष से सीधे संवाद करने का काम किया। 200 से अधिक स्थानों पर यूपी में पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन हुए, माननीय नरेंद्र मोदी जी की रैलियां हुई जिसमें पूरा उत्तर प्रदेश अलग अलग स्थानों पर उमड़ पड़ा। लखनऊ की महारैली वो किसी से छिपी नहीं है। मोदी जी के प्रति जनता में अटूट विश्वास है। लोग भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं, लोग गुंडा राज से मुक्ति चाहते हैं। सपा बसपा कांग्रेस ने मिलकर के देश और प्रदेश को लूटने का काम किया है। लोग ईमानदार सरकार चाहते थे और लोगों को मालूम था कि अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में बैठे हुए हैं और वो गरीबों के लिए कोई योजना बनाते हैं, लखनऊ भेजते हैं, वो गरीब तक नहीं पहुंचती, उसे समाजवादी पार्टी की सरकार में सब लूट लिया जाता है, खा जाया जाता है। इसलिए लोगों को ये लग रहा था कि अगर यूपी में भी माननीय मोदी जी के हिसाब से काम करने वाली सरकार होगी तो यूपी के विकास के द्वार खुल जाएंगे। और लोगों ने मोदी जी पर विश्वास करके कमल खिलाया है, इसलिए यूपी के विकास के द्वार भी आज से खुल गए। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी, आपने प्रधानमंत्री की रैलियों का जिक्र किया और कांग्रेस की भी आज जो प्रतिक्रिया आई है वो यही है, वो बार बार कांग्रेस की तरफ से एक बात ये कही जा रही है कि भाई शमशान और कब्रिस्तान की जो बात करी उसका जो है पोलराइजेशन करने की कोशिश हुई उत्तर प्रदेश के वोटर्स को। आपका भी जब अध्यक्ष बनाया गया तब भी ये कहा जा रहा था कि आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं, आप विश्व हिंदू परिषद के बहुत करीब रहे हैं, तो इसलिए जो है शायद कहीं ना कहीं इस फैक्टर को जो है देखा जा रहा है कि किस तरह से पोलराइज हो पाए। क्या ये वास्तव में ऐसा हुआ कि पोलराइज हुआ है हिंदू वोट वहां पर? मैं सपा बसपा कांग्रेस ये तीनों तिकड़ी को बस इतना कहूंगा कि जनादेश का सम्मान करना सीखें, आदर करना सीखें। उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए समर्थन किया है, साथ दिया है। जिन्होंने तुष्टीकरण की घटिया राजनीति की है, जिन्होंने जातिवाद की राजनीति की है, जिन्होंने परिवारवाद की राजनीति की है, जिन्होंने जमीनों पर कब्जा करने की राजनीति की है, जिन्होंने सरकारी योजनाओं को कागज पर करके पैसे लूट लेने की राजनीति की है, उनको दर्द होता है। क्योंकि मोदी जी ने जिस दिन से शपथ ली है वो गरीबों के लिए समर्पित हैं, वो गांवों के लिए समर्पित हैं, देश के नौजवानों को रोजगार देने के लिए समर्पित हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी यूपी से सांसद हैं, इनको दर्द होता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी काशी के अंदर 3 दिन क्यों रहे। उनको 8 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री की याद है, वो 20 घंटे काम करने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी को शायद पहली बार देख रहे हैं कि कोई प्रधानमंत्री जब सांसद के रूप में अपने संसदीय क्षेत्र की जनता के दर्शन के लिए जाता है तो उनको लगता है कि प्रधानमंत्री क्यों गए। अरे वो काशी के माननीय सांसद हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, वो गरीबों के दिलों पर राज करने वाले हैं। गरीब के नाम पर केवल वोट लेना नहीं, गरीब के जीवन में खुशहाली लाने के लिए
योजनाएं देने वाले हैं। 59 लाख गरीब माताओं बहनों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस का निःशुल्क कनेक्शन दिया गया, जनधन के करोड़ों खाते खोले गए। उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबों के लिए अनेक योजनाएं, नोटबंदी का जो फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया, गरीब आदमी जानता है कि मोदी जी ने कोई बेईमानों को क्षमा करने के लिए नहीं लिया, गरीबों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए। जिन्होंने देश को लूटा है, काला धन एकत्र किया है, उनसे निकाल करके गरीबों के जीवन में खुशी लाने के लिए उन्होंने एक कदम उठाया है। और जिन लोगों ने भी मोदी जी का विरोध किया, देश में किया, प्रदेश में किया, और जहां पर भी चुनाव हुए, जनता ने मोदी जी के कमल को खिला करके उनको जवाब देने का Okay, Mr. Maurya, tell us very frankly, are you going to be the next Chief Minister of Uttar Pradesh? भारतीय जनता पार्टी में चीफ मिनिस्टर कौन होता है, ये केंद्रीय संसदीय बोर्ड तय करता है। और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारा नेतृत्व सबसे शक्तिशाली नेतृत्व भी है। और नेतृत्व जो फैसला करेगा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी उसका पालन करेगी। Right. And in these next 5 years, what are the key promises that you would like to fulfill as soon as possible for the people? Because I mean, it's a huge mandate, and you've been mentioning that the mandate is largely for the Prime Minister and the policies of the central government. But you know, you are going to run a state government now. What is it going to be? What is on the agenda for the state government? भारतीय जनता पार्टी ने लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से विकास का रोड मैप, रोजगार का रोड मैप, सुशासन का रोड मैप, कानून व्यवस्था का रोड मैप उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखा है। और वह रोड मैप इतना जबरदस्त है कि उस पर काम करने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। और वह सरकार उत्तर प्रदेश को विकास में एक ऐसी ऊंचाई देने का काम करेगी जिसकी 14 वर्षों से उत्तर प्रदेश प्रतीक्षा कर रहा है। 14 वर्षों से उत्तर प्रदेश की बर्बादी हो रही है, अब विकास होगा। और केंद्र सरकार की योजनाएं जी, केशव जी, तीन सरकार की योजनाएं, केशव जी, तीन चीजें पूछना चाहता हूं। एक, गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी, क्योंकि आपने बार बार कहा था कि बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि जैसे ही चुनाव जीतेंगे गायत्री प्रजापति जेल में होंगे, उनकी गिरफ्तारी कितने समय में हो जाएगी? दूसरा, कत्ल खाने बंद करने के लिए आपने कहा था कि तुरंत कदम उठाएंगे। और तीसरा, किसानों का कर्ज माफ करने का फैसला पहली बैठक में होगा। ये तीन फैसले कितना लगता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप की तरह सरकार बनते ही धड़ाधड़ फैसले लिए जाएंगे? आप भरोसा रखिए, जो जनता से वादा किया है वादा पूरा करेंगे। भाजपा की सरकार को शपथ लेने दीजिए। अपराधियों के खिलाफ पुलिस उसी प्रकार से कार्रवाई करेगी जैसे अपराधी के खिलाफ की जाती है। उत्तर प्रदेश के किसानों से जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया कर्ज माफी का, उसे भी पूरा करेंगे। और यूपी के अंदर अब दुधारू पशुओं के खून नहीं बहेगा। अब उत्तर प्रदेश की धरती पर दूध और दही की धारा बहे, इसका प्रबंध होगा। इसलिए कत्ल खाने बंद किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाने का काम होगा। यहाँ पर स्टूडियो में केशव जी हमारे साथ प्रफुल्ल केतकर, ऑर्गेनाइजर के एडिटर जुड़े हुए हैं, वो आपसे कोई सवाल करना चाहते हैं। प्रफुल्ल जी। जी जी जी, केशव जी, बहुत बहुत बधाई हो बड़ी जीत के लिए। लेकिन धन्यवाद, आपको भी बधाई है। बड़ी जीत के साथ साथ बड़ा दायित्व भी आता है, और यूपी जैसे स्टेट को गवर्न करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। वहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं आएंगे, तो आप चैलेंजेस क्या देख रहे हैं? इस बड़े मैंडेट को आगे ले जाने के लिए आपको कुछ चैलेंजेस भी लग रहे हैं क्या आने वाले 5 साल में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश चला रही है और कई राज्यों को भी चला रही है। और उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के मार्गदर्शन में इस प्रकार से चलाएगी जिसकी प्रतीक्षा यूपी को लगातार रही है। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का 14 वर्ष का वनवास खत्म हुआ है, कमल खिला है। और भारतीय जनता पार्टी अब उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाने का पूरा रोड मैप लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से हमने रखा है। और वह संकल्प पत्र ही सरकार का एजेंडा है। और अच्छी सरकार चलेगी, विकास करने वाली सरकार चलेगी, सुशासन देने वाली सरकार चलेगी, राम राज्य का सुख देने वाली सरकार चलेगी। केशव जी, एक बस आखिरी बात आपसे जानना चाहता हूं। आपने बहुत मेहनत करी है, आज की रात आराम से सोएंगे क्या, कि कुछ और रह गया अभी बाकी? निश्चित तौर से आज के बाद से हमारी जिम्मेदारी बढ़ी है। सोने का काम तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता नहीं है। हमारे आदर्श
काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं करता। मैं एक कार्यकर्ता हूं, संघ का स्वयंसेवक हूं, और कार्यकर्ता आप जानते हैं काम पर विश्वास करता है और काम करने के लिए अभी भी हम सक्रिय हैं सारे कार्यकर्ता। और उत्तर प्रदेश के अंदर जनता ने जो हमें आशीर्वाद दिया है, मैं हाथ जोड़ करके शीश झुका करके जनता को नमन करता हूं, अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और नेतृत्व के प्रति आभार जताता हूं कि बहुत ही कुशल तरीके से हमारा मार्गदर्शन किया। हमारी पूरी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व के मार्गदर्शन में प्रचार प्रसार किया, अभियान चलाया। उसका परिणाम आज माननीय नरेंद्र मोदी जी की लहर के कारण से यूपी में भाजपा 325 सीटों पर कमल खिला करके अपने सहयोगियों के साथ सरकार बनाने जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया केशव प्रसाद मौर्य जी आपका। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और कल मालूम पड़ेगा मुख्यमंत्री कल मालूम पड़ेगा मुख्यमंत्री कौन होगा। और बहुत सारे दिल्ली में पत्रकार ये भी कयास लगा रहे हैं कि उनमें शायद आपका भी नाम हो सकता है। बहरहाल नाम किसका होगा कल उसका फैसला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद धन्यवाद जी। चलिए केशव प्रसाद मौर्य हमारे साथ जुड़े थे लखनऊ से और पहली टिप्पणी आपकी प्रफुल्ल। केशव प्रसाद मौर्य बहुत कॉन्फिडेंट थे और इसमें कोई दो राय नहीं। सभाएं बड़े बड़े नेताओं की दिखती है लेकिन ग्राउंड पर जो है केशव प्रसाद मौर्य ने बहुत काम किया और ये पे करा है। देखिए दो चीजें, दो ऑब्जर्वेशंस में खास करके कहूंगा। केशव प्रसाद मौर्य ने जब प्रदेश अध्यक्ष पद संभाला था तो उस समय बहुत लोगों को ये लग रहा था कि क्या यूपी जैसे स्टेट की, क्योंकि यूपी में अपने आप में अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। ट्रेडिशनली यूपी की राजनीति तो कास्ट और अलग अलग कम्युनिटीज की पॉलिटिक्स में देखा जाता है। ऐसी स्थिति में जिनका बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं, ऑर्गेनाइजेशनली काम करते रहे लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में नहीं रहे, कम रहे, तो ऐसे केशव प्रसाद मौर्य उसको संभाल पाएंगे क्या। लेकिन धीरे धीरे जैसे उन्होंने कॉन्फिडेंस गेन किया, परिवर्तन यात्राएं, मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा गैल्वनाइजिंग पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट था। और 2014 के चुनाव में जो पॉजिटिव मैंडेट, प्रो मोदी मैंडेट है और इसलिए उसकी तुलना असेंबली इलेक्शन से नहीं की जा सकती, ये जो माना जा रहा था उसको नकारते हुए मिस गवर्नेंस के और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के दो इश्यूज को ग्राउंड लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर मुझे लगता है कि कैडर को मोबिलाइज करने में केशव प्रसाद मौर्य का, और आज भी जिस तरह से वो, मतलब आज भी वो इलेक्शन मोड से निकले नहीं है, तो वो जो कॉन्फिडेंस उनका दिख रहा है, तो मुझे लगता है जहां से उन्होंने शुरू किया था उससे बहुत अलग केशव प्रसाद मौर्य आज दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि बात हो रही थी कि उत्तर प्रदेश में इस जीत के क्या मायने हैं और इस हार के क्या अर्थ हैं। कांग्रेस और बीजेपी को बहुत कुछ अभी कहना है, उन दोनों प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, उनके मन में बहुत कुछ और बहुत कुछ सवाल हमारे पास भी हैं, उस पर आएंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। एक भारत सरदार पटेल डिजिटल प्रदर्शनी देखने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। जैसे सूट टाइप, यू नो, मुझे ये ग्रीन या फिर ब्राउन। ठीक है, आप ये पैक कर दीजिए। सेब कितने का दिया? बच्चे को संतरा ही पसंद है, यही दे दीजिए। अगर आप माँ बनने वाली हैं तो HIV टेस्ट जरूर करवाएं। बच्चे को HIV से बचाने के लिए जल्द ही पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है। करें वही जो बच्चे के लिए हो सके। हर सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की जांच एवं सलाह मुफ्त और गोपनीय है। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप शौच के लिए कहाँ गए। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि अगर आप खुले में शौच के लिए गए तो क्या आपने अपने बच्चे की जान को खतरे में डाला? क्या आपके गांव की बच्चियों को खुले में शौच करते हुए किसी ने बुरी नजर से देखा? आप खुद समझदार हैं, सक्षम हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में 70,000 से ज्यादा गांवों के लोगों ने खुले में शौच की प्रथा को खत्म कर दिया है। गांव के बच्चे, महिला, पुरुष सब इस लक्ष्य में जुटे। निगरानी समितियां बनी जिन्होंने खुले में शौच कर रहे लोगों को समझाया, शौचालय बनाए, उनका इस्तेमाल करना सिखाया। क्या आपका गांव भी बनेगा खुले में शौच से मुक्त? आइए
स्वच्छ भारत अभियान से जुड़िए। अब नहीं तो कब? अपना एक मकान हो, अपनी एक कार हो और साथ में कारोबार हो, पंजाब नेशनल बैंक के साथ ये सारे सपने साकार हो। पीएनबी, मेरा अपना बैंक। परिंदों के ये घोंसले हमें यकीन दिलाते हैं, सच है ये। तिनका तिनका जोड़कर ही आशियाने बनाए जाते हैं। कुछ ऐसे ही बनाया हमने भी अपने इस देश को। सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, सरकार के हर निर्माण में एक तिनका हमने भी लगाया है, क्योंकि हमने सही समय पर आयकर चुकाया है। तो आओ एक बार फिर 15 मार्च तक अपने एडवांस टैक्स की अंतिम किस्त को जमा कर अपने देश, अपने आशियाने को बेहतर से और बेहतर बनाएं। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। अपना एक मकान हो, अपनी एक कार हो और साथ में कारोबार हो, पंजाब नेशनल बैंक के साथ ये सारे सपने साकार हो। पीएनबी, मेरा अपना बैंक। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। और विशेष कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के नतीजों और रुझान, और रुझान तो अब नहीं कहना चाहिए, ज्यादातर नतीजे हमारे सामने आ चुके हैं। अब नतीजों और नतीजों के विश्लेषण पर हम बने हुए हैं। और उत्तर प्रदेश के जो चुनाव नतीजे आए वो दरअसल बहुत बड़े चुनाव नतीजे। अभी हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य से कि कैसे जो है वो इस जीत का श्रेय किसको देते हैं। लेकिन कुल मिलाकर इस जीत के मायने सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी इस जीत का बहुत असर पड़ेगा। और ये माना जा रहा है कि इन चुनाव में इस जीत के बाद राज्यसभा में बीजेपी का काम जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। राज्यसभा की स्थिति बदलेगी और सरकार के तौर पर प्रधानमंत्री अपनी नीतियों को अधिक सशक्त तौर पर लागू कर सकेंगे। इसके साथ साथ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी बीजेपी को एक बड़ा पुश मिला है और बीजेपी का पलड़ा यहां पर भी भारी रहेगा। यूपी समेत 5 राज्यों में बीजेपी को मिली बम्पर सफलता पार्टी के साथ ही देश की सियासत के लिए काफी मायने रखती है। लोकसभा चुनाव में करीब अब 2 साल बचे हैं। यह जीत 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के लिए एक मजबूत आधार बनेगी और इस बुनियाद पर भाजपा 2014 को दोहराने की कोशिश करेगी। भाजपा जहां नए जोश और उत्साह के साथ लोकसभा चुनाव में उतरेगी, वहीं यूपी की हार से विपक्षी दलों का उत्साह ठंडा पड़ सकता है। इस जीत का सबसे बड़ा असर राष्ट्रपति चुनाव पर पड़ेगा। अब बीजेपी तय करेगी अगला राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कौन होगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 5 साल का कार्यकाल इसी साल जुलाई में खत्म हो रहा है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए अगर बात एनडीए की करें तो इसके पास कुल 4,57,352 वोट हैं और उन्हें अपने राष्ट्रपति कैंडिडेट को सीधे चुनाव जिताने के लिए 91,658 वोटों की और जरूरत है। ऐसे में बीजेपी के इन चुनावी फतह से उसे राष्ट्रपति चुनाव में बड़ी बढ़त हासिल होती दिख रही है। यही नहीं, उपराष्ट्रपति चुनाव में भी इसका असर दिखेगा और बीजेपी को वहीं बढ़त हासिल होगी। यूपी और उत्तराखंड में बड़ी कामयाबी से आने वाले दिनों में राज्यसभा में बीजेपी की ताकत बढ़ेगी। इससे न केवल राज्यसभा में काम पर असर पड़ेगा, बल्कि जरूरी बिल भी नहीं अटकेंगे। एक अहम बात अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी दिखेगी। बिल पास होंगे तो जरूरी फैसले तेजी से होंगे और बड़े आर्थिक सुधार जोर पकड़ेंगे। ऐसे में निवेश के लिए माकूल माहौल बनेगा जो अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। भाजपा की जीत से पीएम मोदी की नीतियों पर भी मोहर लग गई है और इससे पीएम को अपने आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने और कड़े फैसले लेने में मदद मिलेगी। सियासी तौर पर बात करें तो पार्टी के लिए इस साल 2 और चुनावी राज्यों के लिए भी राह आसान हो जाएगी। यही नहीं, उसकी अपने सहयोगी दलों पर निर्भरता और कम हो जाएगी और कभी उत्तर प्रदेश की पार्टी कही जाने वाली बीजेपी का असर देश के लगभग सभी कोनों में नजर आएगा। ये चुनावी नतीजे अभी से गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव की तस्वीर भी कुछ साफ कर देते हैं। दरअसल इस साल के अंत में इन्हीं दोनों राज्यों में चुनाव होने हैं और गुजरात और हिमाचल प्रदेश बड़ी चुनौती साबित नहीं होगा। बीजेपी की जीत से यह भी साफ हो गया है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता पहले की तरह आज भी कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो एक छोटा सा आंकड़ा ही अगर समझ ले, जो आपने स्टोरी देखी उसके संदर्भ में, कि राष्ट्रपति के चुनाव में बीजेपी जो है अगर देखे तो 95,000 वोटों की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की जीत से ही देखे तो बीजेपी आज करीब 83,000 वोट जो है बीजेपी के पाले में, राष्ट्रपति अगर चुनाव की बात करें तो आ जाते हैं। तो इस तरह के कई जो हैं समीकरण अब बदलेंगे। मार्क राइट। Mr. Sudesh Verma, you were talking about the change in narrative completely with the Prime Minister now at the head. We understand that, the Prime Minister's leadership is not being questioned. The BJP is the largest party in the world. And of course, the Prime Minister is leading the largest party in the world and also perhaps one of the most powerful countries. The point that are we too heavily dependent on the Prime Minister? We saw him campaigning vigorously in Uttar Pradesh, naturally so because he also represents Varanasi, but he was also, campaigning for the local elections in Maharashtra to some extent. Yeah, So you see, the point is that even though it is such a large party, it's dependent on one man to some extent. I understand, Mark. What you're saying is a very relevant question. You see, in Prime Minister Mr. Narendra Modi and our party president Mr. Amit Shah, you find such deadly combination of energy. The team, the synergy which is there. You was talking about Chanakya, that Modi ji is the person, functional head of the government, coming out with so many schemes that needs to be implemented at the local level if you want the outcome to be positive. That we have been able to do, and credit definitely goes to party president, because you see the way you would be surprised that he would stay even in one room. He's not bothered where he's sleeping, where he's not sleeping. I've never seen such kind of campaign, where two people are so aggressively putting everything, there in the campaign. Right. And that is the big positive for the BJP, because if a person like me, I get energized, like I would not say, no, I'm getting fatigued when I see that party president and Prime Minister himself is campaigning day in and day out without sleeping. So that is one positive. And when you have such a leader, it of course transforms the energy to others also. Sure. Of course, what you see is that the two prominent faces, Prime Minister Narendra Modi ji and Amit Shah ji. Right. But this translates into result. When I was talking just before that, when you asked, I said it's a tectonic shift. Right. But why people earlier did not think motivated enough, rather put it in this way, to come out of the caste dynamics and vote differently, because they never thought that there was a need, because there was no leader who could actually motivate with development parameters here the way Mr. Narendra Modi has done. Because you see, Jan Dhan Yojana, as we say, 1969 banks were nationalized by then Prime Minister Indira Gandhi. Right. And then after that 45 years the country had to wait for a poor man to have his account zero balance. Even a rich man, even a middle class person like me could not go to the bank and say open my account zero balance. They would not do so. So this is a big development that has taken place. Obviously, the pan-India presence of the Prime Minister is what has brought the BJP, so many gains, even in a place like Manipur, for instance. It's obviously not the local leadership there that is probably making the role. But if I can bring you in at this point in time, Mr. Dua, we see this contrast now. There is a party which is being led from the front by the team that Mr. Sudesh has mentioned. When we see, young leaders trying to cobble up an alliance, trying to lead, and this is a big state. One was the incumbent chief minister at the time. No match actually, on that plane in terms of leadership. Is this a factor that the Congress needs to look at if they're looking at as a party that's going to first of all revive and then compete with the largest party in the world currently? On a lighter note, I think Mr. Keshav Prasad Maurya is going to have a tough time from Mr. Amit Shah today, because he's reduced 1 hour of Prime Minister's sleep time, or rather increased. Because Amit Shah ji used to say that Prime Minister works for 21 hours and he said he works for 20 hours. So I think this is a serious matter which should be taken note by BJP. Right, but come to the point as far as leadership is concerned, because the whole... I'll come to the campaign leadership. He talked about the mega roadshow for Lucknow, but he forgot to mention 3 retakes of a roadshow in Varanasi, which BJP had to do 3 retakes because one was not successful, so second had to be done and then third had to be done just to match the roadshow which had happened earlier of opposition parties.
Right. If you covered, we've covered UP elections. Ashok ji, you were there. Mark, you were there. Right. Mr. Dua, we'll come back to you. We seem to be having some technical problems, so we're going to take a short commercial break at this point in time, but we'll return to this discussion. Do stay with us. You're watching DD News. We are discussing the verdicts that we received today from the 5 states. परिंदों के ये घोंसले हमें यकीन दिलाते हैं, सच है ये। तिनका तिनका जोड़कर ही आशियाने बनाए जाते हैं। कुछ ऐसे ही बनाया हमने भी अपने इस देश को। सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, सरकार के हर निर्माण में एक तिनका हमने भी लगाया है, क्योंकि हमने सही समय पर आयकर चुकाया है। तो आओ एक बार फिर 15 मार्च तक अपने एडवांस टैक्स की अंतिम किस्त को जमा कर अपने देश, अपने आशियाने को बेहतर से और बेहतर बनाएं। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। रोशनी का सिर्फ एक ही नाम, सूर्य LED। खर्चा कम, चले ज्यादा, घर घर रोशनी का वादा। सूर्य। आज खुश तो बहुत होगे तुम, जो आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं फैलाए, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। बहुत खुश होगे तुम। बहुत खुश होंगे कि आपने मेरे मुख से आज अपना फेवरेट डायलॉग सुन लिया। अब आप वादा कीजिए कि आप मुझे भी खुश करेंगे। अरे भाई, डायलॉग सुना करके नहीं, अपनी नर्सरी में कंपोस्ट का इस्तेमाल करके। देखिए, फल, सब्जियों के छिलके, सूखे पत्ते, इन सब चीजों से बने कंपोस्ट मिट्टी को और भी उपजाऊ बनाता है। और ये आपको किसी भी फर्टिलाइजर की दुकान पर मिल जाएगा। जानकारी के लिए 1969 पर फोन लगाइए और पूछिए। कंपोस्ट बनाओ, कंपोस्ट अपनाओ। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। परिंदों के ये घोंसले हमें यकीन दिलाते हैं, सच है ये। तिनका तिनका जोड़कर ही आशियाने बनाए जाते हैं। कुछ ऐसे ही बनाया हमने भी अपने इस देश को। सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, सरकार के हर निर्माण में एक तिनका हमने भी लगाया है, क्योंकि हमने सही समय पर आयकर चुकाया है। तो आओ एक बार फिर 15 मार्च तक अपने एडवांस टैक्स की अंतिम किस्त को जमा कर अपने देश, अपने आशियाने को बेहतर से और बेहतर बनाएं। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ, टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। गुड मॉर्निंग। अरे तुम्हारे चेहरे पर ये दाने कैसे? रात मैंने मुहासू वाली क्रीम लगाई थी जो आप लाए थे। लाना जरा वो क्रीम। ये लीजिए। ओह गॉड, दुकानदार ने तो मुझे एक्सपायरी डेट वाली क्रीम दे दी है। क्या अब हम कुछ नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? बिल है ना मेरे पास। जी हाँ, आप दुकानदार की शिकायत कंज्यूमर फोरम में करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार एवं एसोचैम द्वारा जनहित में जारी। एक बार फिर आपका स्वागत है और हम उत्तर प्रदेश और बाकी 4 राज्यों के चुनाव नतीजों पर हम लगातार बने हुए उसके विश्लेषण को उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये दरअसल जितनी बड़ी जीत होती है जश्न भी उतना ही बड़ा होता है। तो आज बीजेपी की बहुत बड़ी जीत हुई उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में, और भाजपा की अप्रत्याशित सफलता पर दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश में लखनऊ और उत्तराखंड देहरादून में हर जगह जीत जो है, इस जीत ने पार्टी के लिए होली की खुशी दोगुनी कर दी। फागुन का महीना है और इसमें जो है केसरिया रंग जो है आज ज्यादा चटक हो गया, और दिल्ली से लेकर देहरादून और लखनऊ तक हर जगह पर केसरिया रंग जो है, इसकी गुलाल की होली जो हमने खेलते हुए देखी।
11 तारीख को चुनाव के नतीजे आएंगे, 13 तारीख को विजय की होली मनाएंगे, केसरिया रंग से रंगी होली मनाएंगे। यूपी चुनाव में प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने बार बार ये कहा कि इस बार की होली केसरिया होगी और यूपी की जनता इसी केसरिया रंग में सराबोर हो जाएगी। शनिवार सुबह से जैसे ही नतीजे आने लगे, ये साफ हो गया कि यूपी केसरिया रंग में ही सराबोर होगी। जैसे जैसे नतीजे आते गए, दिल्ली से लखनऊ तक बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न में डूबते चले गए। कहीं पटाखों का शोर तो कहीं रंग और गुलाल की फुहार। चुनाव परिणामों से दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल है। कार्यकर्ता पीएम मोदी और भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते हुए होली खेलने लगे। मोदी का देश के अंदर मोदी का साथ दिया है और बहुत खुशी का माहौल है। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर है और यहाँ होली दिवाली इकट्ठी मनाई जा रही है। आज हमारे लिए होली भी और दिवाली भी हम बहुत खुश हैं। बिल्कुल जीत जाए, जबरदस्त जीत जाए। मैं भाजपा के और मोदी जी के जो विकास का एजेंडा है उसी के हिसाब से ये चाहते हैं मुख्यमंत्री जो भी बने सिर्फ विकास पे चर्चा करे और किसी धर्म जाति पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। देखिए, युवाओं के लिए रोजगार बढ़ना चाहिए। जो हम लोग बाहर जाते हैं, अगर यहाँ रोजगार बढ़ेगा तो यूपी में बहुत सारी संभावनाएं हैं। कुछ यही हाल लखनऊ में बीजेपी कार्यालय का रहा। पार्टी की जीत के बाद लखनऊ में पार्टी कार्यालय पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने देखा कि कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। उन्होंने भी जश्न मनाने का मौका हाथ से जाने नहीं दिया। केशव मौर्य कार्यकर्ताओं के साथ होली के रंग में रंगे और झूमते नजर आए। उन्होंने न केवल कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया, कार्यकर्ताओं के साथ ठुमके लगाते भी दिखाई दिए। हमारी हो सकती है, ये हम कहना चाहते हैं। 2017, 2019 में भी दोहराएंगे, मोदी जी को फिर से भारत का पीएम बनाएंगे। बहुत बहुत बधाई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उत्साह का जबरदस्त माहौल है। आप देख सकते हैं चारों ओर जिस तरह से लोग इकट्ठा हैं। आज ही यहाँ पे होली खेल ली गई है। आप देख सकते हैं अबीर गुलाल। तो उत्तर प्रदेश में जमकर होली मन रही है, दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ और दिल्ली में एक बीजेपी कार्यकर्ता एक तख्ती लिए हुए थे और बड़ा दिलचस्प उस पे लिखा था कि बच्चा सुरक्षित गोदी से, देश सुरक्षित मोदी से। तो कार्यकर्ताओं का अपना जुनून होता है, अपना जश्न होता है और कार्यकर्ता नए नए नारे भी करते हैं। बहरहाल इस पर हम और बात करेंगे, इस जीत के निहितार्थ और जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। सफलता के लिए चाहिए एक संकल्प। जीएसटी कई करों की जगह एक कर। सफलता के लिए चाहिए सुगमता। जीएसटी वस्तुओं का बाधा रहित प्रवाह करेगा व्यापार आसान। रोशनी का सिर्फ एक ही नाम, सूर्य। सूर्य एलईडी, खर्चा कम, चले ज्यादा, घर घर रोशनी का वादा। सूर्य। खाना रखा है अब्बू, खा लो। ठीक है फरदीन। फरदीन, 11वीं क्लास में एडमिशन मिल गया? हाँ जी शुक्रिया,
मेरे अब्बू मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं। शुक्र है हमारे इस सपने को पूरा करने के लिए हमें मिल रही है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की तरफ से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने मैट्रिक में 50% अंक प्राप्त किए हैं, और लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है। मदद हमारी, मंजिल आपकी। सफलता के लिए चाहिए एक संकल्प। जीएसटी, कई करों की जगह एक कर। सफलता के लिए चाहिए सुगमता। जीएसटी, वस्तुओं का बाधा रहित प्रवाह करेगा व्यापार आसान। सफलता के लिए चाहिए दमदार स्ट्रोक। जीएसटी, एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। जीएसटी, आजादी के बाद सबसे बड़ा कर सुधार, अर्थव्यवस्था के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। और एक बार फिर आपका स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। और हम जीत, जो आज 5 राज्यों में जीत हुई है बीजेपी की, 3 राज्यों में, 2 राज्यों में बीजेपी की बड़ी जीत है, 1 राज्य में कांग्रेस की जीत है। बाकी 2 राज्यों में जो है वो बड़ा नेक टू नेक है। हालांकि उसमें बीजेपी की तरफ से भी दावा किया गया है सरकार बनाने का और कांग्रेस की तरफ से भी दावा किया गया, उस पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश में बीजेपी की इस जीत के बाद पार्टी और सरकार दोनों में ही खुशी की लहर है। तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने पार्टी की इस जीत को सुशासन की जीत बताया है। यूपी विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है। देश के सबसे बड़े राज्य में पार्टी को बहुमत मिलने पर वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री राजनाथ सिंह गदगद हैं। राजनाथ सिंह ने इस पार्टी की जीत को विजय नहीं बल्कि महाविजय बताया है। उन्होंने जीत का सेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर बांधने के साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की संगठनात्मक क्षमता और पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत को भी जीत की बड़ी वजह माना है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी जीत पर खुशी जताते हुए कहा कि जनता राज्य सरकार से ऊब चुकी थी और इस वजह से उसने सुशासन पर भरोसा जताया है। I think is a very positive achievement as far as Uttar Pradesh is concerned. Now, it's hardly ever happened in the past that a winning combination comes close to 43-44% of the popular vote and wins almost 80% of the seats in Uttar Pradesh. And we improved upon our 2014 performance. I think this is extremely important because of this. वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मिली जीत जनता की जीत है, जिसने भाजपा पर जनता के भरोसे को दोहराया है। साथ ही उम्मीद जताई कि इस जीत से उत्तर प्रदेश में विकास नई ऊंचाइयों को छुएगा। The mood of the nation is go with Modi. Let us go with Modi, because Modi means making of developed India, and Modi is the messiah of the poor. This is the impression of the people that has been fortified by the elections now, particularly in the Hindi heartland, and they have shown their utmost faith in the leadership of Modi. Their future is better with Modi. That is the mood of the nation. That's why the results have come. तमाम और केंद्रीय मंत्रियों ने भी इस जीत को जनता की जीत करार देते हुए कहा कि यूपी बदलाव के दौर से गुजर रहा है। ये एक बदलाव की जीत है, ये उत्तर प्रदेश को बदलने की जीत है। इसमें विकास भी है, समाज के हर वर्गों को जोड़ना है, गुड गवर्नेंस है, अपराध के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रामाणिक संदेश है। मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई दूंगा उनके कुशल नेतृत्व के लिए, उनकी पारदर्शिता और
विश्वसनीयता के लिए, जिसमें आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है, उनके पीछे खड़ा है। वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने यूपी में मिली जीत को पार्टी की विकासात्मक सोच की जीत बताया। उन्होंने इसे केंद्र में एनडीए सरकार की नीतियों पर जनता के भरोसे की जीत करार दिया है। को चंद महीनों का काम नहीं है, ये 2014 से जो काम शुरू हुआ, भारत की सरकार ने जिस तरह से काम करना शुरू करा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस कमिटमेंट के साथ काम करना शुरू करा, उसका नतीजा है। और उसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद कि उन्होंने विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी में, प्रधानमंत्री मोदी जी में। जाहिर है यूपी में पार्टी को बड़ी सफलता मिली है और संगठन के साथ ही सरकार के लोग भी पार्टी के इस फैसले से बेहद खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। तो संगठन और सरकार दोनों जगह पर बीजेपी जाहिर तौर पर जो है खुशी का माहौल है और हम इस चर्चा पे बने हुए हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए भी एक खुशी जरूर पंजाब से आई है और उस पर मैं जरूर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। प्रफुल्ल, क्या कांग्रेस का रिवाइवल हो रहा है? कुछ लोग ये कह रहे हैं, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने दावा किया कि भाई कांग्रेस के रिवाइवल की शुरुआत होगी है, पंजाब से शुरुआत होगी। देखिए, ऐसा हो रहा है तो भारत के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए ये बहुत अच्छा सूचक ये माना जाएगा। लेकिन इस जीत को यदि कांग्रेस पार्टी आत्ममंथन के तौर पर उत्तर प्रदेश से अलग करके ये कहेगी कि उत्तर प्रदेश की हार की जिम्मेदारी तो कोई नहीं लेगा, जीत की जिम्मेदारी तो किसी के सर पे है, तो मुझे लगता है कि इसको समग्रता से देखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के हम यदि 2014 के आंकड़े देखें लोकसभा के, तो 73 सीटें छोड़कर 2 गांधी परिवार की, 5 यादव परिवार की, जी, ये 7 सीटें हैं। उसके बाद ये जनादेश आना, ये सीधे सीधे ये दिखता है कि नेपोटिज्म, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, अलायंस ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस, इसके खिलाफ ये लगातार मैंडेट है। नेशनल पार्टी होने के बाद बिहार में, उत्तर प्रदेश में रीजनल पार्टीज की एक छोटी अलाइड पार्टी कांग्रेस बनकर रहना, ये कांग्रेस की राजनीति के लिए तो ठीक नहीं है, देश की राजनीति के भी ठीक नहीं है। पंजाब, मणिपुर और गोवा से जो आ रहे हैं कि उन स्थानिक मुद्दों को समझते हुए, स्थानिक संगठन को मजबूत करते हुए, स्थानिक नेतृत्व को आगे खड़ा करते हुए जब लीडरशिप आगे बढ़ती है तो उसका एक सक्सेस रेट ज्यादा होता है। यहां पे भी मोदी, अमित शाह, इनका नाम सब ले रहे हैं, चेहरे दिख रहे हैं, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर्स भी लगे हुए थे। बीजेपी का पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कैडर, ओम माथुर, सुनील बंसल, खुद केशव प्रसाद मौर्य, ये सारे लोग लगे हुए थे जी। तो इस तरह से जब आप लोकल लीडरशिप को वहां से इवॉल्व करके लाएंगे और उसको केवल एक डायनेस्टी से जोड़कर नहीं रखेंगे, तब आपकी पार्टी का सही में रिवाइवल हो सकता है। हाँ। ऐसा रिवाइवल होना ये कांग्रेस के लिए और देश के लिए भी, देश के लोकतंत्र के लिए भी शुभ संकेत होगा, लेकिन कांग्रेस इसको इसी तरह से समग्रता से देखेगी। Right, but Mr. Ketkar, what happens when one party gets very powerful is that opposition unity starts taking place. There's a realignment of forces. Do you see that happening to a large extent? That did happen in Bihar to some extent, which all managed to win the election there. And in this realignment of forces, you know, on the national stage, one would have thought that the Congress would be the second pole through which this realignment would take place. But, you know, with the Congress getting weaker, there is no pole for that unity of the opposition. See, that to happen, you know, all parties coming together against one dominant party, the second party has to be a national party with a, you know, a kind of glue which will bring, you know, all the regional parties together. Unfortunately, under leadership of Rahul Gandhi, that doesn't seem to be happening as far as, you know, Congress is concerned. So can other regional leader, you spoke about Bihar, Bihar, it was Nitish Kumar, you know, as far as the vote share and parties presence is concerned, Lalu was much more dominant, but still he accepted Nitish Kumar's face because he knew that in terms of policy matters and in terms of, you know, leadership as an image, he is much popular in Bihar. So you need to have somebody
who can bring all other parties together. For that, Congress has to be somewhere, you know, into 90-100 range at least, where, you know, out of 543, Congress has to have its strong presence at least in 100-120 seats. तो प्रफुल्ल जी जिस संकट की तरफ इशारा कर रहे हैं आशीष जी, उस संकट का कांग्रेस को जाहिर तौर पर खुलकर आप नहीं कहेंगे, लेकिन अंदाजा हम मानते हैं कि होगा। कार्ति चिदम्बरम का एक बयान आया था बीते दिनों और ये माना जा रहा था कि शायद इन चुनाव के बाद जो है कुछ और उंगलियां उठ सकती हैं कांग्रेस के नेतृत्व पर। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कांग्रेस के जिन सीटों की उत्तर प्रदेश में बात किया उनमें अमेठी, रायबरेली, यहाँ इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस का परफॉर्मेंस जो है इन विधानसभा चुनाव में बिल्कुल जो है लग रहा है ज़मीन सरक गई है। देखिए, जहाँ तक बिहार के एक अलायंस जो फॉर्मेशन हुई थी तो वो उसमें एक बहुत क्लियर दोनों लीडर्स ने कहा था, लालू प्रसाद जी ने भी और नीतीश कुमार जी ने, कि वो कांग्रेस की पार्टी के बिना संभव नहीं था और कांग्रेस पार्टी ने पोल पोजीशन उसमें निभाई थी। और ये आई विल करेक्ट माय को पैनलिस्ट ऑन दिस। सेकंड, इवन इन यूपी कांग्रेस हैज अमंग्स द पीपल, कांग्रेस हैज गॉट ट्रेमेंडस गुडविल amongst the people. If you go in general, we've not got that many votes because of you can say the coalition or because they had some anti-incumbency against them, the party with which we had a coalition. But the last time the Congress was in power was in 1986. People have forgotten those times. No. If you go around Congress had tremendous goodwill amongst the people, and Punjab is an example where we come back. Goa again, we've come back from. No, but you were in power party in both opposition. these states. One should not forget. If this is the popularity of the party, biggest party, largest party, then the chief minister would not have lost in Goa. They would not have got reduced to 1 or 2 seats in Punjab. I mean, if that would have 23 seats. But how many is BJP got? You know, it got 1 seat or 2 seats at the most. No, but you know, then you have to take the holistic picture in mind, not just trying to target one party or trying to target. सर टारगेट करने की बात कोई नहीं कर रहा। प्रफुल्ल जी ने भी हमने भी कहा कि कांग्रेस का रिवाइवल और देश के लिए अच्छा है, लेकिन क्या कांग्रेस उसके लिए तैयार है? That's why I'm saying if you look at the holistic picture and in coming elections, if you see in 2018 where we are going to polls, Rajasthan is there, Gujarat is there. You'll see Congress springing back in power there. Madhya Pradesh is there. These big states, Congress party is coming back into power, and the organizational strength of Congress party there on the ground is there. And we need to take another short commercial break. But before that, Mr. Sudesh Verma, you wanted to comment on this. But actually, a lot of people from the Congress have been going across to the BJP and strengthening the BJP to some extent. Is that you see, Mark, Punjab can be explained. If you see history of Punjab, there one party or alliance gets voted to power, the next time they are voted out of power. But for 2012, when Akalis and BJP were voted back to power, so 2 consecutive terms, there was double anti-incumbency. Irrespective of that, you would be surprised to know that we have retained 30% vote, which tells this story. Had Aam Aadmi Party not been there, we suspect that they have eaten into our vote. The story would have been slightly different. I'm not saying that we would have won, but the story might have been slightly different. So we should not, if you do a deeper analysis, because finally, how you stay in power because of the vote percentage, because of support. It's not just one election. पंजाब में शायद कांग्रेस का वोट परसेंट पिछली बार की तुलना में कम हुआ है, अभी फाइनल आंकड़े नहीं। That is what you have to finally analyze. सीट बढ़ी है बहुत तेजी से। But Aam Aadmi Party has not eaten into what it has divided the anti-incumbency vote. You'll come to know. Let final analysis come. See, Manipur, nobody could give an outside chance to the BJP in Manipur. We had one MP who had come from Trinamool Congress. You see the way we have performed in Manipur, commendable. It shows that people of Manipur, despite a strong leader like Ibobi Singh, who tried to divide, quoting the Naga Accord, it was a very sensitive issue in Manipur. Despite that, you see, people have voted for the BJP. That shows that people are seeing BJP as a party of hope. Naga Accord was nothing to showcase in Manipur. Now your party says it was just a framework, not an accord. इस पर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे ब्रेक के बाद। आज रिजल्ट आएगा। बेस्ट ऑफ लक। इस बार क्लास में फर्स्ट आया है डेविड। कांग्रेस। पर अब क्या हुआ डेविड? मुझे आगे पढ़ना है।
पर पापा कहते हैं पैसे नहीं है। पैसे नहीं है, वो देखो। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम अल्पसंख्यक समुदाय के उन बच्चों के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने पिछली कक्षाओं में 50% अंक प्राप्त किए हैं, और लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है। मदद हमारी, मंजिल आपकी। परिंदों के ये घोंसले हमें यकीन दिलाते हैं, सच है ये। तिनका तिनका जोड़कर ही आशियाने बनाए जाते हैं। कुछ ऐसे ही बनाया हमने भी अपने इस देश को। सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, सरकार के हर निर्माण में एक तिनका हमने भी लगाया है, क्योंकि हमने सही समय पर आयकर चुकाया है। तो आओ एक बार फिर 15 मार्च तक अपने एडवांस टैक्स की अंतिम किस्त को जमा कर अपने देश, अपने आशियाने को बेहतर से और बेहतर बनाएं। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। Incredible India। सफलता के लिए चाहिए एक संकल्प। जीएसटी, कई करों की जगह एक कर। सफलता के लिए चाहिए सुगमता। जीएसटी, वस्तुओं का बाधा रहित प्रवाह करेगा व्यापार आसान। सफलता के लिए चाहिए दमदार स्ट्रोक। जीएसटी, एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। जीएसटी आजादी के बाद सबसे बड़ा कर सुधार, अर्थव्यवस्था के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। श्रीमान श्रीमती ने किया अपना घर बुक, मनाई खुशियाँ, बांटी मिठाइयाँ, दिन महीने हुए, महीने बने साल, पर कंस्ट्रक्शन ना आगे बढ़ा। जैसे जैसे पोजीशन आगे बढ़ता गया, दिल उतनी ही तेजी से धड़कता गया। बिल्डर से की बात तो जवाब वही गोलमाल, पर श्रीमान श्रीमती ने हार ना मानी, रास्ता ढूंढा, पहुँचे कंज्यूमर कोर्ट। न्याय तो मिला, हर जाना भी मिला, और बिल्डर को करारा सबक मिला। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार एवं एसोचैम द्वारा जनहित में जारी। सफलता के लिए चाहिए एक संकल्प। जीएसटी, कई करों की जगह एक कर। सफलता के लिए चाहिए सुगमता। जीएसटी, वस्तुओं का बाधा रहित प्रवाह करेगा व्यापार आसान। सफलता के लिए चाहिए दमदार स्ट्रोक। जीएसटी, एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। जीएसटी आजादी के बाद सबसे बड़ा कर सुधार, अर्थव्यवस्था के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। क्या बात है राशिद, फर्स्ट डिवीजन में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी तुम उदास हो? लेकिन सर वो सोच रहे होगे कि खर्चा कहाँ से आएगा? हैं? चिंता मत करो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप। फेलोशिप हमारे लिए सर? हाँ, तुम्हारे लिए और अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय से जूनियर रिसर्च फेलोशिप या एमफिल के लिए आवेदन दिया। मदद हमारी, मंजिल आपकी। और विधानसभा चुनाव के नतीजों पर अब लगातार बने हुए हैं और हम 3 राज्यों की जो बात कर रहे हैं जहां पर तस्वीर बहुत साफ है, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड। लेकिन 2 राज्य जहां पर स्थिति अभी साफ नहीं है, वो हम मणिपुर और गोवा। यहां पर सरकार जो है दरअसल कैसे बनेगी, किसकी बनेगी? सुदेश, जब अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज शाम को, तो उस वक्त रुझान चल रहे थे, लेकिन उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंटली कहा कि 4 राज्यों में हम सरकार बना रहे हैं। लेकिन अब जो टैली दिख रही है उससे ऐसा लगता नहीं कि गोवा में और मणिपुर में कहीं पर भी बीजेपी। देखिए, डिपेंड करेगा जो एमएलएस जीते हैं उनका रुझान किस तरफ है। अगर एंटी कांग्रेस फ्लैंक पर आए हैं और कोई अलायंस कांग्रेस के साथ नहीं है, आइडियोलॉजिकली अदरवाइज नहीं होता है, तो निश्चिंत ही जो दूसरी धड़ा है उसके साथ समर्थन मिल सकता है, क्योंकि फाइनली ये तो गेम ऑफ नंबर्स है। क्या होगा ये तो उन एमएलएस पर डिपेंड करता है। कांग्रेस के पास भी मौका है, लेकिन मौका हमारे पास भी है। क्या कांग्रेस के साथ वो जाएंगे या वो चाहेंगे नहीं, क्योंकि
एंटी कांग्रेस माहौल है, तो हो सकता है कांग्रेस के साथ ना जाए, क्योंकि कांग्रेस का देखिए मणिपुर में पॉकेट बोरो रहा है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है ना, कांग्रेस का पॉकेट बोरो रहा है। हमारे जैसे पार्टियों का नॉर्थ ईस्ट में आप समझ सकते हैं कि जीत कर आना इस तरह से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तो पहली बार वहाँ लगा जैसे बीजेपी, हम लोग तो आश्चर्य से बीजेपी को इतना भारी समर्थन मिला, तो निश्चित उसके पीछे कोई एक अंडरलाइंग करंट है, उस करंट को समझने की जरूरत है। जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, if you take Manipur, BJP plus is quite high actually. You have BJP has 21 seats. Naga People's Front is with NDA at the center, so it has 4. That's 25. LJP has supported you. That's 26. And then they have independents, which are 1. It's only with the National People's Party, which is Sangma's party. They have 4. Where they go is depends on who will form the government. That is what I was saying. It depends. You know, the groupings are very clear. Like LJP, as you said, of course they are with us in the government, and Naga Front also likely to. So you can calculate that yes, who is going to form government. You know, because but on the Congress, on the strength? other hand, has 28 seats plus the Trinamool Congress has 1 seat. Presumably, it will go with them. So that has 29. They just need 2 seats. So that, if you presume the independent goes with the leader, that comes to 30, and So then it is a very perhaps the fluid National situation. People's You know. Party. It's a fluid situation. It's not a so we'll have situation. to. I think Congress is the single largest party, and the nation cannot afford another misadventure like Arunachal Pradesh, what was done to the government to break the government there, or even in Uttarakhand, the courts came down heavily. So Congress is the single largest party. As per the rules, will approach the government tomorrow. Leave it on the office of the governor. 24 hours is the time when no, we are very confident that the governor will act constitutionally. Single largest party has got there's no worry on that enough count. allies. We will form the government in Manipur as well as Goa. Goa, you need 4 seats. Yeah, Goa traditionally has been, you know, that there's a shortfall of 2 or 3 seats, but we are the single largest there as well. So, and we are 18 seats. I think it's a shortfall. 17 plus Nationalist Congress will join you. 18. That's the Churchill Alemao. So okay. there are 3 seats. So पर सवाल ये कि गोवा में स्थिर सरकार मिलेगी, क्योंकि गोवा में सरकार की स्थिरता जो है एक बड़ा सवाल रहता है. I think 21 is a small assembly, but with 18 seats of Congress party, it will be a stable government. That we can assure. You see, that is the whole picture of Goa and Manipur. That if you see, no party can actually claim a big victory. It's a very thin margin, you know, and when you see the percentage of vote, then you'll understand the actual how people have voted and what has been the percentage that has eaten by the Aam Aadmi party to the vote of both the parties. So you will come to know, but the fact is none of these victories or defeats, whatever, can come closer to what has happened in Uttar Pradesh. And that is the hallmark of this election. I'm not saying Uttarakhand because Uttarakhand we have won heavily, I could have said that. But Uttar Pradesh, because Uttar Pradesh is the den of caste politics and it has voted in a different way. That shows that the country is ready to accept the development narrative which will be impacting other elections to come. That is the biggest narrative of this election. लेकिन साथ साथ ये ठीक है लेकिन इसके अलावा जो हम लगातार जो बात कर रहे थे राष्ट्रीय राजनीति पे इस चुनाव का, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी जीत, और मैंने जो आंकड़ा बताया कि अगर राष्ट्रपति चुनाव की अगर बात करें, क्योंकि अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी की जीत है सीधा वो समीकरण बदल चुका है, करीब 83,000 वोट आपको मिलते हैं. तो ये समीकरण जो है, पहले ऐसा लग रहा था कि राष्ट्रपति चुनने के लिए बीजेपी को शायद एक कंसल्टेशन की जरूरत पड़ेगी, वो एक कंसेंसस कैंडिडेट ढूंढेगी, लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि आप शायद जो है अपनी बढ़त बना सके. लोगों ने बहुत बड़ा मैंडेट क्या लगता है? हाँ, क्या लगता है? लोगों ने बहुत बड़ा मैंडेट दिया है, क्योंकि देखिए जनता जो है ना वो फैसला लेती है बहुत सोच समझकर. और ये जो सारे आंकड़े आप बता रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट, 10% ऑफ असेंबली सीट्स पूरे कंट्री का वहाँ से सबसे ज्यादा राज्यसभा में सीटें आनी है. जो आपको पता है राज्यसभा में कितना तंग हुए हम, क्योंकि हमारे पास लोकसभा में नंबर होने के बाद भी राज्यसभा में ये रोक देंगे, भले ही सही गलत की बात छोड़िए, हमें नहीं पसंद है आपका चेहरा, हम नहीं पास करने देंगे. तो जनता वो भी देख रही थी. इन सारे का इम्पैक्ट बड़ा होगा. That's the beauty of democracy, that even if you had the 282 majority, you could not bulldoze land acquisition bill because it was a wrong move, and ordinance after ordinance after ordinance
ordinance. लेकिन आशीष साहब आपको लगता है and ultimately you had to withdraw it because you But the composition of the Rajya Sabha, which was in the favor of the Congress for a while, is changing, isn't it? And it's likely to change for the long term also, but isn't it? even Rajya Sabha till 2019, it's not going to come entirely in the favor of BJP, even with the present composition. आप कमजोर तो होंगे, विपक्ष कमजोर होगा। बात कमजोर। अशोक जी, मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। कमजोर अभी तक स्ट्रांग होने की बात नहीं है। डेमोक्रेसी में एवरी एमपी मैटर्स। मैं यही तो कह रहा हूँ। आप भाई सुदेश जी ने कहा आप लगातार तंग करते रहे। मैं इनसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। 7 साल से गुजरात से आपने पास नहीं होने दिया। मैं आपसे आशीष जी एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप बताइए कि डिमोनेटाइजेशन हुआ, पूरे देश ने देखा जी, लोग बहुत आस्था के साथ लाइन में लगे कि देश में कुछ बदलाव होगा। इन्होंने डिमोनेटाइजेशन को क्या कलर दे दिया? हमारे लाख बोलने के बाद भी हम लोग बोलते रहे कि पब्लिक सपोर्ट है, मान जाइए। नहीं, पब्लिक सपोर्ट नहीं है। इन्होंने एक नया नैरेटिव दिया और उसके बाद जितने सक्सेसिव इलेक्शंस हुए वो सब ठीक है, उस सब में हम जीते। जहां तक इन्होंने क्या बोला? हमने मुद्दा नहीं बनाया। इन्होंने बोला कि डिमोनेटाइजेशन मुद्दा होगा, आप हारेंगे। नहीं, तो हमने बोला अगर आप यही बोल रहे हैं तो इसी को मान लीजिए। आपने डिमोनेटाइजेशन मुद्दा बनाया होता तो आप गोवा में भी जीतते और आप मणिपुर में भी जीतते और आप पंजाब में भी जीतते। लेकिन उसके बाद देखिए, उसके बाद आज भी बोल रहे हैं, हारने के बाद भी बोल रहे हैं कि नहीं, इसका पता नहीं पाए लोगों को। डिमोनेटाइजेशन जहां तक बात है, रिजल्ट, चुनाव रिजल्ट कोई भी हो, इट इज रिकॉर्डेड इन द हिस्ट्री। लेकिन आप नहीं मानेंगे कि जनता ने इसका मैंडेट दिया है एज अ हिस्टोरिकल ब्लंडर। और मैं आप यही नैरेटिव जो है ना, I think it's a bit unfortunate to say something like that when the people have decided to support it. People have not decided on demonetization. Every single election, Mr. No, not at all. Every single election after demonetization has been won by the BJP but handsomely. people have not voted on the agenda of demonetization. आशीष जी अमित शाह ने चुनौती दी थी, उन्होंने कहा था कि मैं इसको जनमत मानने के लिए तैयार हूं। तो सवाल ये है कि उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश चुनाव को मैं जनमत मानने के लिए every state has got its own complexities, every state has got its own issues, every state has got its own challenges. But on demonetization, the fact remains that this is a historical blunder recorded. लोगों ने बेवकूफी कर दी इसके बारे में। You have hit the India growth story badly. उसके बाद भी हम 7% ग्रोथ पर आ गए। क्या बात करते हैं? चाइना से ज्यादा ग्रोथ हमारा है। इस तरह की बात कर रहे हैं। Maybe your viewpoint, but it's not the point of view of the people of the country, at least in terms of the mandate that the BJP has received posted. Let's take a short commercial break at this point in time, and then we'll come up for closing comments after that. Do stay with us. अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। सफलता के लिए चाहिए एक संकल्प। जीएसटी, कई करों की जगह एक कर। सफलता के लिए चाहिए सुगमता। जीएसटी, वस्तुओं का बाधा रहित प्रवाह करेगा व्यापार आसान। सफलता के लिए चाहिए दमदार स्ट्रोक। जीएसटी, एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। जीएसटी, आजादी के बाद सबसे बड़ा कर सुधार, अर्थव्यवस्था के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। क्या बात है राशिद, फर्स्ट डिवीजन में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी तुम उदास हो? लेकिन सर वो सोच रहे होगे कि खर्चा कहाँ से आएगा? हैं? चिंता मत करो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप। हमारे लिए सर? हाँ, तुम्हारे लिए और अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय से जूनियर रिसर्च फेलोशिप या एमफिल के लिए आवेदन दिया। मदद हमारी, मंजिल आपकी। सफलता के लिए चाहिए एक संकल्प। जीएसटी, कई करों की जगह एक कर। सफलता के लिए चाहिए सुगमता। जीएसटी,
वस्तुओं का बाधा रहित प्रवाह करेगा व्यापार आसान। सफलता के लिए चाहिए दमदार स्ट्रोक। जीएसटी, एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। जीएसटी आजादी के बाद सबसे बड़ा कर सुधार, अर्थव्यवस्था के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। भैया 2 कोल्ड ड्रिंक देना। 30 रुपए दे दो। पर एमआरपी के हिसाब से तो सिर्फ 24 रुपए हुए। एमआरपी को छोड़ो, ठंडा करने के लिए बर्फ भी तो लगता है। पर आप एमआरपी से ज्यादा नहीं ले सकते, ये गलत है। जी हाँ, एमआरपी जानना हर ग्राहक का हक है। अगर कोई दुकानदार एमआरपी से अधिक डिमांड करे तो उसके खिलाफ अपने राज्य के विधिक माप विज्ञान विभाग में शिकायत करें। आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की भी मदद ले सकते हैं। सफलता के लिए चाहिए एक संकल्प। जीएसटी, कई करों की जगह एक कर। सफलता के लिए चाहिए सुगमता। जीएसटी, वस्तुओं का बाधा रहित प्रवाह करेगा व्यापार आसान। सफलता के लिए चाहिए दमदार स्ट्रोक। जीएसटी, एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। जीएसटी आजादी के बाद सबसे बड़ा कर सुधार, अर्थव्यवस्था के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। चलिए, हम अपने कार्यक्रम के इस आखिरी दौर में हैं और आप तीनों मेहमानों से एक आखिरी कमेंट जरूर बनता है। हमने देखा है 5 राज्यों के जो चुनाव हुए, इसके नतीजे अब सामने आ चुके हैं। बहुत बड़े चुनाव थे, 690 विधानसभा सीटें, 5 राज्य, और अब इनके नतीजे सामने हैं। और इतना बड़ा जो नतीजे आए हैं, जिस तरह 5 राज्यों को मिलाकर के, मैं तीनों मेहमान से सिर्फ एक बात जानना चाहूंगा कि बहुत संक्षेप में, कि इस नतीजों का संदेश जनता की तरफ से क्या है। प्रफुल्ल केतकर, आपसे शुरू करते हैं। जनता का संदेश, ये नतीजे क्या कहते हैं? जनता का संदेश ये साफ है कि पुराने ढर्रे की राजनीति नहीं चलेगी। आप किसी भी जाति समुदाय को आप ग्रांटेड नहीं पकड़ सकते, वोट बैंक की राजनीति नहीं कर सकते, और सबसे महत्वपूर्ण बात, नकारात्मक मानसिकता के साथ। अभी थोड़ी देर पहले आशीष जी ने बात कही कि एंटी इनकम्बेंसी जिनके साथ थी उनके साथ हमने अलायंस किया। पंजाब में बीजेपी अकाली दल के साथ रहना वो पहले से था, 10 साल से वो अलायंस था। आप तो नया अलायंस कर रहे थे जी। उनके खिलाफ, उनके मिस गवर्नेंस के खिलाफ, लॉ एंड ऑर्डर के इशू के खिलाफ लोगों का गुस्सा 2014 में आपने देखा नहीं था, और फिर भी आप उनके साथ अलायंस करने जा रहे हो। किस लिए? हमें सेक्युलर कम्युनल का वो पुरानी राजनीति अभी नहीं चलेगी, हमें इनको रोकना है। किस नाम पर? सेक्युलर फ्रंट बनानी। तो मुझे लगता है कि अभी आपको नए तरह की, नए संगठनात्मक, नए समीकरणों के साथ नए विकास का नैरेटिव, पॉजिटिव राजनीति आपको करनी पड़ेगी। आशीष, देखिए, जहां तक डेवलपमेंट की बात है तो कांग्रेस पार्टी तो डेवलपमेंट के मुद्दे पे ही गई थी, पॉजिटिव एजेंडा था हमारा। खाली जहां तक आप बात करें कि भारतीय जनता पार्टी वाले डेवलपमेंट की बात करें, तो अब यूपी चुनाव में थे, वहां डेवलपमेंट की बात ही नहीं की गई। वहां पर अगर डेवलपमेंट की बात की गई होती तो पिछले 3 साल में सेंटर में क्या क्या काम हुआ है उसकी बात हुई होती, मेक इन इंडिया की बात हुई होती। लेकिन आईआईपी डाउन है, कोर सेक्टर डाउन है, पीएमआई डाउन है, इन्वेस्टमेंट इनफ्लो की जगह नेट आउटफ्लो हो रहा है, स्टैंड अप स्टार्टअप नहीं हो पाया, स्टार्टअप स्टैंड नहीं हो पाया, नमामि गंगे की बात नहीं हुई क्योंकि वहां कोई सफाई नहीं हो पाई। तो डेवलपमेंट की जहां तक आपने कहा था 5 राज्यों के चुनाव अलग-अलग चुनाव होते हैं, किसान को अलग देखना चाहिए। मुझे बात पूरी करनी दीजिए, 1 मिनट और लूंगा। फार्मर डिस्ट्रेस की बात नहीं, रूरल डिस्ट्रेस की बात नहीं, जो पिछले 3 साल में, 2.5 साल में, 3 साल में बढ़ा है, उसके बारे में बात नहीं की। एमएसपी, किसानों को पूरा दाम नहीं मिल पा रहा, उसको 50% जो वादा किया गया था स्वामीनाथन कमीशन का, वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ, उसकी बात नहीं की गई। तो डेवलपमेंट की बात ही नहीं कही गई। ठीक है, आप कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है खाली पोलराइजेशन के मुद्दों पे बात की गई। इसका मतलब ये है कि जनता का संदेश क्या है, ये सिर्फ 10 जनपद को पता चलता है और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को खाली पोलराइज करके डिस्क्रिमिनेशन के नाम की बात की गई। और जब कोई व्यक्ति संदेश जनता का क्या, सोने का बहाना करता है, उसको आप नहीं उठा सकते। अगर वाकई में कोई सोया हुआ है तो आप उठाएंगे तो उठ जाएगा। हम हमेशा मानते हैं कि सत्ता हमारे लिए साध्य नहीं है, एक साधन है परिवर्तन का। हम मानते हैं कि लोगों ने हमें एक मैंडेट दिया 2014 में
नरेंद्र मोदी जी को इतना बड़ा मैंडेट मिला कि डेवलप करो, क्योंकि खुल के उन्होंने बोला कि हम देश का विकास करना चाहते हैं। और हम जब जनता के पास वापस गए, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा सीटें दी, 73 सीटें दी थी, तो जनता ने इस बात को माना कि ठीक काम कर रहे हो, आगे भी करते रहो, जो अपोजिशन पार्टीज बोल रही है उससे मत घबराओ। क्योंकि कभी कभी होता है ना, जब बहुत हल्ला होता है चारों तरफ से, तो संशय होता है कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे। ये जो मैंडेट है ये हमारे सरकार को बहुत मजबूती प्रदान करेगा, हमें बहुत कॉन्फिडेंस देगा कि नरेंद्र मोदी जी और ज्यादा अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। कैसे देश को आगे समय बिल्कुल नहीं है। अपना अपना सबका सब लोग अपने अपने हिसाब से अर्थ निकालते हैं, तो जाहिर तौर पर जनता का जो संदेश है उसको तीनों मेहमानों ने अपने अपने तरह से जो है उसके अर्थ के मायने बताए। लेकिन समझना पड़ेगा राजनीतिक पार्टियों को, राजनेताओं को समझना पड़ेगा। जनता ने अपना फैसला दे दिया है, उस फैसले से क्या सीख ले सकती है पार्टियां, ये इनको देखना है। और ये जनता बार बार जो है ये मौका नहीं देगी। एक मौका जरूर जनता ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद दिया है। उम्मीद करेंगे कि इससे सबक जो है राजनेता सीखेंगे। बहरहाल आज दिन भर हम आपके साथ बने रहे, लेकिन कल भी हम आपको बता दें कि ये चुनाव के बाद जो कुछ तस्वीरें बन रही हैं और क्या अब सरकारें कैसे बनेंगी, मुख्यमंत्री कौन होगा, ये कुछ बड़े सवाल हैं जिनके जवाब हम आज नहीं तलाश पाए। लेकिन कल ये सिलसिला जारी रहेगा और कल हम आपको जरूर बताएंगे। इसलिए आप 24 घंटे लगातार जो है डीडी न्यूज पर नजर बनाए रखें, लगातार देखते रहें, क्योंकि डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है लगातार। फिलहाल मुझे और मार्क को दीजिए इजाजत। Namaskar. Namaskar. Thank you very much for watching. It's been a great day for democracy, and one that we have seen the verdicts of 5 states, and also the message that the people of India have given to these to democracy. One of those key messages, I think, is that in the future we are likely to see cleaner politics because of the manner in which the people are wanting cleaner politics. Perhaps the political parties will also have to decide, and we may see more electoral reforms, things that could change in the future for democracy in our country, all for the better, actually. Thanks very much for watching. Namaskar. Namaskar.